की हाल चाल है सर? नमस्कार सर, नमस्कार। य एष सुप्तेषु जाग्रति, य एष सुप्तेषु जाग्रति, कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः सर्वे तदूना सर्वे कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता। सभी को नमस्कार। I welcome all of you in today virtual sweeping meeting on revised code of ethics, which are already applicable from 1st July 2020, and to guide us, to update us, and to educate us, we have the most respected personalities with us. I welcome C. Amarjit Chopra sir in our study circle. Although there is no need of an introduction of Chopra sir, everybody know him very well, and profile is also very large. If I want to read, one meeting is required for reading the complete profile. But I want to share some glimpse of professional life of Chopra sir. Chopra sir has a very rich and long experience of more than 45 years. He is a senior partner in GSA and Associates. Chopra sir was elected your Premier Institute, President of your Premier Institute for the year 2010-11. Sir was also nominated as Chairman of National Advisory Committee on Accounting Standard and Chairman of Committee to Revise Company Auditor Report 2006 by Government of India. Sir has been awarded honorary membership of Australian Institute of Chartered Accountant and life membership of International Accountant London. Sir is on the board of various companies and in the chairman of Audit Committee of IFCI Venture Capital Limited and Rico Auto Limited. और कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें सर मतलब अनकाउंटेड कंपनियां हैं जिसमें सर बोर्ड पे हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि टाइम भी नहीं इतना कि हम पढ़ सकें उसको. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sir is recently appointed as a member of NAFRA. With these words, I once again welcome Chopra sir and request him to give blessing to your study circle and start the today deliberation on revised code of ethics. Over to Chopra sir. आप प्रमोद जैन जी से नहीं बुलवाओगे? Sir, अरे नहीं सर, नहीं सर, सर please do. I definitely expect you to speak. Pramod ji, I can tell you that you are one of the pride of this profession. So मैं आपसे जरूर कुछ सुनना चाहूँगा before I really take over. It's my request to you. अरे सर, Because the kind of work that you are doing is phenomenal. God bless you in all your endeavors. That's all I can say. Thank you very much, sir. Honorable past President Amarjit Chopra ji, the convener and the Deputy Convener Rakesh Gupta ji and Praveen Kumar Jain ji, and all my dear friends. It is really a prestige for all of us that our Honorable past President Amarjit Chopra ji, who is an authority into audits, accounting standards, and corporate laws, and general awareness of the members at large, is amongst us to enrich our knowledge on the revised code of ethics, which is revised code of ethics 2019. And it is, I have
traveled to so many places, and the respect which Chopra sir has throughout the country is phenomenal. And really, I am very, very much inspired by him. When even after being a past president, he is there to help the students also, leave apart members, but he is taking the GMCS classes the whole days in various parts of the country. That is a really remarkable and a thing to learn from you, that even after being a past president, you are always guiding the students to how to go ahead in their lives. And members, of course, you are coming to a small study circle, being a past president, that is just above all things, I would say. We have rarely seen a past president contributing so much to the members, to the student, and also guiding the government. I've seen, I witnessed there in the corporate committees and the various committees of the institute also, and before the MCA also, the stance you take, and also in the disciplinary committees which you are heading as a government nominee. Really, sir, my hats off to you, and always inspiring all the members. Truly obliged, sir. All yours, sir. Please. मैं तो आपसे कुछ प्रोफेशनल सुनना चाह रहा था सर, आपने उल्टी सर आज तो यही प्रोफेशनल है सर। लोगों को ये लगे कि मैंने आपको किसी और पर्पस से बोला। नहीं सर, मेरा पर्पस ये था कि आप कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में संबंधित कुछ बताएं। एनीवे, बट आई कैन ओनली टेल यू प्रमोद जी दैट मैं भी काफी जगह जा रहा हूँ और काफी जगह मिल रहा हूँ लोगों को, बहुत पूरी जूम एंड जब फिजिकली भी मिला हूँ। I think the kind of respect that you are developing for yourself of the members, it is absolutely phenomenal, and one should feel proud of that particular fact. So मैं यही pray कर सकता हूँ in the next term you achieve whatever you want to achieve basically, and maybe next election proves to be your last election. जीतने के बाद वैसे यही प्रार्थना करूँगा ऊपर वाले से कि आपका अगला इलेक्शन जो है आपका लास्ट इलेक्शन हो, and you achieve the milestone that you want to achieve. So far as the topic of the day is concerned with regard to the ethical standards, the code of ethics, let me tell the members that this is 12th edition of the code of ethics. Last volume was of 2009, if you ask me. That was the 11th edition. At that time, I happened to be the vice president of the institute. उस वक्त 2 वॉल्यूम्स थे हमारे इनके कोड के। पहला कोड ऐसा था जिसमें कि डिफरेंट एक्ट्स थे जो हमारी कंप्लायंसेस थी, बेसिक प्रिंसिपल्स थे ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। दूसरा वॉल्यूम वो था जिसमें जो इंस्टीट्यूट ने whatever regulations institute had stipulated, like कि साहब आप 65 से ज्यादा टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते। उस वक्त तो खैर नंबर कम था, आप 65 से ज्यादा टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते, या आप इससे ज्यादा के कंपनीज ऑडिट नहीं कर सकते, या इससे ज्यादा के डिस्टेंस में आप मतलब कि इंचार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें, या एक पर्टिकुलर साइज ऑफ द फर्म कितनी फीस से कम चार्ज नहीं कर सकती किसी क्लाइंट से, ये सब चीजें मेरी वॉल्यूम 2 में थी। ये जो नया कोड ऑफ एथिक्स आया है इसमें 3 वॉल्यूम्स हैं। पहले वॉल्यूम में वही है, डिफरेंट एक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, और दूसरे में वही है जो इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन है, वो भी चेंज भी नहीं हुआ। एक्चुअली सेकंड वॉल्यूम हैज नॉट अंडरगोन अ चेंज, दैट विल अंडरगो अ चेंज नाउ। और थर्ड वॉल्यूम वो है जो हमारे डिसाइडेड केसेस हैं कुछ। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द राइट स्टेप्स ऑफ द इंस्टीट्यूट कि भाई लोगों को ये तो दर्शाएं कि हमारे मेंबर कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंट पाए गए इन कोड ऑफ एथिक्स। बेसिकली मैं कभी कभार मन में ये सोचता हूं कि कोड ऑफ एथिक्स को कभी आप
मतलब कि कोडिफाई कर सकते हैं क्या? लॉ, इसको इथिक्स को कभी लॉ बना सकते हैं क्या? क्योंकि एथिक्स इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन. एथिक्स तो इम्बाइब्ड है. दीज आर द वैल्यूज विच आर इम्बाइब्ड इन ए ह्यूमन बीइंग. अब अगर प्रमोद जी में वैल्यू ये है कि भाई मुझे प्रोफेशनली ही काम करना है, तो ये वैल्यू है. दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इथिकल प्रैक्टिसेस बेसिकली. हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आर्टिकल ट्रांसफर के लिए आता है तो भी वो फोन उठा के दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बात करते हैं कि भाई तुम्हारा ये आर्टिकल ट्रांसफर के लिए मेरे पास आया, आपको कोई इतराज तो नहीं? ये कहीं लिखा नहीं हुआ. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपने ये फोन उठा के बात करनी है. तो इथिक्स जो है वो एक बिहेवियर है, बेसिकली ह्यूमन का बिहेवियर है. और ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये तो फैमिली कल्चर से आता है, फैमिली वैल्यू से आता है, ये सोसाइटी की वैल्यू से आता है. जिस बैकग्राउंड में आप रहते हैं वहां से आता है. और इसमें पेरेंट्स का और फैमिली का बहुत बड़ा रोल है. आपके गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप इथिक्स किस तरीके के डेवलप करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, किस तरीके की वैल्यूज डेवलप करते हैं. कई चीजें ऐसी हैं जो संसार में आप करते हैं, वो लीगल तो हो सकती है पर इथिकल नहीं होंगी. और मैं अपने हर प्रोग्राम में, जो भी मैंने प्रोग्राम किया है कोड ऑफ इथिक्स के ऊपर, ये एग्जांपल दिए हैं मैंने जो अब आपको देने जा रहा हूं. एक हमारा स्टेट है, वहां पे दो पार्टीज मिलके किन्हीं दो पार्टीज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी और ए और बी ने मिलके सी और डी को खूब गालियां निकाली, जितनी निकाल सकती थी. और सी डी ने ए बी को खूब गालियां निकाली. इलेक्शन सी डी जीत गई. अब सी डी में से एक सी निकल के ए बी के साथ ज्वाइन कर गई और सरकार रन कर रही वहां पे. अब ये लीगल तो हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये लीगल तो है, पर ये इथिकल है क्या? पब्लिक ने मैंडेट किसको दिया था? पब्लिक ने तो मैंडेट सी डी को दिया था कि इकट्ठे बैठ के सरकार चलाओ. पर सी के अपने कुछ इंटरेस्ट रहे होंगे, सी को कोई पोजीशन चाहिए होगी. सी ने उस पोजीशन के चक्कर में ए बी के साथ, जिसको जिंदगी भर गालियां दी होंगी, उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं. और बी बेचारे जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो बाहर बैठ के अपोजिशन में गाना गा रहे हैं. अब ये आपका लीगल तो हो सकता है परंतु एथिकल तो नहीं है, किसी भी सूरत में एथिकल नहीं है. एक दूसरा स्टेट है, वहां पे तीन पार्टीज ने मिलकर एक पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा और ये तीन पार्टीज जीत गई और इन तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई. अब उसमें से एक पार्टी टूट के एक रात में जाके बी के साथ बैठ गई, मतलब कि वो जो हारी पार्टी थी उसके साथ बैठ गई. अब वो सरकार हारी हुई पार्टी और ये चला रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में. अब ये भी लीगल तो हो सकता है, एथिकल तो नहीं है किसी भी सूरत में. तो कभी भी आप इथिक्स को कोडिफाई नहीं कर सकते मेरे हिसाब से. देयर इज नो वे दैट यू कैन कोडिफाई द इथिक्स. हम तो उस देश में रहते हैं जहां पे कोई भी व्यक्ति जेल में बैठ के तो इलेक्शन लड़ लेता, एमपी भी बन जाता, एमएलए भी बन जाता और पार्लियामेंट में जाके वोट भी दे आता किसी भी बिल के अगेंस्ट या फेवर में. ये भी है. अब ये लीगल तो ठीक है, लीगल होगा, परंतु वाकई में एथिकल है या नहीं है? हम उस देश में रहते हैं जहां पे जिन लोगों को टिकट मिले पार्टीज के, उनके अगेंस्ट मर्डर के चार्जेस हैं, रेप के चार्जेस हैं, 3600 और चार्जेस हैं, पर इलेक्शन लड़ रहे हैं. और कोई ऐसी पार्टी नहीं है, एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिसमें ऐसे लोग ना हो. ये मजेदारी की बात ये है. लॉ परमिट करता, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वो कहते हैं हम हेल्पलेस हैं, लॉ परमिट करता देश का. वो ये कहेंगे कि हाँ जी एथिकल तो नहीं है ये, इट अपीयर्स टू बी अनएथिकल, पर उस अनएथिकल को क्या करूं जो कि लीगल है. मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूं, जो मैंने एक एग्जांपल बहुत अच्छा पढ़ा कहीं पे, वो कहता है कि कभी कभार आप गूगल पे जाओ ना, बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं. गूगल बाबा एक ऐसा बाबा है जो आपको बहुत कुछ देता है, सिखाता भी बहुत कुछ है.
तो उसमें उसने ये सिखाया आपको कि भाई ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक आप रेड लाइट पे खड़े, कार आपकी खड़ी हुई है, रेड लाइट है बकायदा, आपने देखा रेड लाइट के उस पार किसी व्यक्ति को गिरे हुए देखा आपने, और आपने उसी वक्त अपनी कार को रेड लाइट को जंप करवाया, और जंप करवाने के बाद आपने उस व्यक्ति को अपनी कार में बिठाया और कार में बिठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। अब एक तरीका तो ये लगा हो सकता है कि भाई पुलिस वाला उसके पीछे भाग रहा फू फू करता हुआ कि भाई तुमने लॉ तोड़ दिया, तुमने रेड लाइट जंप कर दी। मैं कहता हूं इस व्यक्ति से ज्यादा इथिकल आदमी कोई नहीं है। काम तो इसने इलीगल किया, लाइट तो तोड़ी इसने, इसमें कोई शक नहीं, परंतु उस लाइट को तोड़ते हुए उसने काम क्या किया? उसने काम किया, एक व्यक्ति गिरा हुआ है उसको उठाया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। इससे बड़ी एथिकल वैल्यूज नहीं हो सकती। उसने शायद किसी की जान बचा ली हो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट एट टाइम्स कई चीजें लीगल होते हुए भी अनएथिकल हैं, और कई चीजें अनएथिकल इलीगल होते हुए भी एथिकल हो सकती हैं। जनरली जो इलीगल होगा जनरली एथिकल नहीं होगा, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। एक बात और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ तो सी एक्ट है, सी एक्ट में शेड्यूल्स हैं। जब शेड्यूल आ गए तो इसका मतलब यह है कि लॉ का पार्ट बन गया, कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली। पर मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर अपने आप से, कई बार ही पूछता हूं प्रश्न। अब मैं कल ही रिलायंस कैपिटल की बैलेंस शीट पढ़ रहा था। आप, मैं नाम लेके बात कर रहा हूं क्योंकि पब्लिश्ड है, इसलिए मुझे कहने में कोई दुविधा नहीं है, और मैं उसमें से कुछ पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा बाद में। अब उसमें एक पर्टिकुलर फर्म ने रिजाइन किया, और उस फर्म ने लिए लिखा रेजिग्नेशन के अंदर कि इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ ऐसे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, जिनकी वजह से हमें रिजाइन करना पड़ रहा है। रिलायंस कैपिटल ने उसको चैलेंज भी किया, वो तो उन्होंने उनके अगेंस्ट डिफेमेशन सूट भी फाइल किया, वो अलग बात है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। इस ऑडिटर ने इनकी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं किया कहीं पे भी। ये आपको और मजेदारी की बात बता देता हूं, इनका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी उसने चैलेंज नहीं किया इस फर्म का। पर अगर आप उसकी रिपोर्ट पढ़ें तो आपको हंसी आएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं मैंने कहां पे वो लिखा था, कल रात को बैठ के मैंने लिखा, आपके लिए नहीं लिखा, किसी और पर्पज से लिखा था। हाँ, जब एसए 700 में ये ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है तो ये कह रहा है कि जी मेटेरियल अनसर्टेनिटी तो है इस कंपनी में, क्योंकि इस साल का लॉस जो है वो 2700 कुछ करोड़ का हो गया है, बल्कि 5300 कुछ करोड़ का है, और पिछले साल प्रॉफिट था 157 करोड़ का, और बाकी इनकी सब्सिडीज भी जो हैं कई इधर उधर हो गई हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। परंतु मैनेजमेंट ने हमें प्रोजेक्शन दे दी हैं, मतलब कि हम फिर भी इसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे। पर आपको पता हो 143(3) में एक क्लॉज ऐसी भी है जहां पे ऑडिटर को यह कहना पड़ता है कि भाई आपकी कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क्स तो नहीं है जिससे कि फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी अफेक्ट होती हो। वहां पे ऑडिटर क्या लिख रहा है? प्रमोद जी, ये सोचने की बात है, जरा आप पीयर रिव्यू या FRRB वाले को बोल दीजिएगा, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर। वहां पे ऑडिटर लिख रहा है, गोइंग कंसर्न मैटर में हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। गोइंग कंसर्न मैटर में हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। और अपनी एसए 700 में ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी हो सकती है, पर मैं अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं इस ग्राउंड के ऊपर। और जब इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट दे रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर, उसकी मैं आपको जरा एक पहलू बता देता हूं, देखिए कितनी जबरदस्त है। और मैं ये समझता हूं कि शायद वो जो ऑडिटर्स ने रिजाइन किया होगा ये घबरा के ही किया होगा कि ये है क्या यहाँ पे, और इस ऑडिटर ने वैसे रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन दे रखी है, पूरी की पूरी।
मैं पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा हूं, पर ये आपको बता रहा हूं, उसने कहा internal financial controls are weak even with regard to, please mind the language, even with regard to processing documentation, including justification for sanctioning the loans oblique exposures, risk assessment of exposures and its monitoring of end use of funds, evaluation of borrowers' repayment capacity, and the policy of sanctioning the loan to entities with weaker credit worthiness. छोड़ा क्या फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर? मतलब आप ये कह रहे हो, सारा आप कुछ ये ही कह रहे हो, मेन एक्टिविटी। आप एज एन ऑडिटर ये कह रहे हो, अगर मैं वाकई में नफरा में बैठा हूं तो सबसे पहला केस ये उठाऊं और कोई केस नहीं उठाऊं। कि एक व्यक्ति मुझे ये लिखे कि भाई मैं एनबीएफसी का ऑडिट कर रहा हूं और इतनी बड़ी एनबीएफसी का ऑडिट कर रहा हूं, ये जो सैंक्शन करते हैं लोन, इस पे मुझे फेथ नहीं है, ये रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं एक्सपोजर्स की, इस पे मुझे फेथ नहीं है, इनका ये एंड यूज वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे पता नहीं है, ये दूसरी पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस भी देखते हैं, ये इसके में भी ऊपर मुझे फेथ नहीं है, रीपेमेंट होगी या नहीं होगी इस पे भी मुझे फेथ नहीं है, पर बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ये तो वो बॉर्डर वाली चिट्ठी हो गई, बिल्कुल वही चिट्ठी हो गई कि भैया, मतलब कि मैं तो वो अमिताभ बच्चन वाली स्टोरी देख रहा हूं जो शोले में उसने धर्मेंद्र के लिए मौसी को बोली थी कि लड़का कभी कभार वहां पे भी चला जाता है, वो भी लगा लेता है, जुआ भी खेल लेता है, वैसे ठीक ठाक है, करेक्टर एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है करेक्टर के अंदर। अब इस रिपोर्ट को क्या करूं? वो कहते हैं लीगल तो हो सकती है, 143(3) में रिपोर्ट दी हुई है, एथिकल कहां पे है? मुझे इसमें कोई एथिकल का एंगल मुझे कहीं तो नजर नहीं आया। डिबेंचर्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स, ये 1000 भी नहीं है, worth thousands of crores of rupees have been recalled by the parties, और उसमें जो डिले है इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो कारों में खुद दिया हुआ है, उसमें वो डिले 53 डेज से लेके 189 डेज तक की ऑलरेडी हो चुकी है 31 मार्च 20 को। परंतु है सब कुछ ठीक ठाक, कंपनी ठीक ठाक चल रही है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या बोले, ये रिलायंस कैपिटल की बैलेंस शीट है, पब्लिश्ड है, आप उठा के पढ़ लीजिएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। प्रमोद जी के सामने इसलिए बोला कि भाई एफआरआरबी वाले बाकी काम करते हैं, इसको भी उठा लो यार। और इसमें तो ऑडिटर का रेजिग्नेशन हुआ था और नए ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया, और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है ऑडिटर की, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो अगर ये रिपोर्ट हम नहीं पकड़ेंगे तो और किस रिपोर्ट को पकड़ेंगे? मेरे ख्याल में I'm being very frank and blunt about it because it really hurt me yesterday night when मैं इसको पढ़ रहा था किसी और कारण से, very frankly, क्योंकि कहीं पे प्रोविजन का मामला आ रहा था इस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में। तो मैंने वो पढ़ के आज आर्गू किया कि इसमें प्रोविजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस कंपनी के, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है तो उसमें प्रोविजन की जरूरत है या नहीं है। बट आई वॉज हर्ट कि ये रिपोर्ट को मैं लीगल तो कह सकता हूँ, एथिकल तो कहीं नहीं है भैया, पूरी प्रैक्टिस जो है अनएथिकल। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज, मैं कई बार ही सोचता हूँ प्रमोद जी के किसी व्यक्ति ने रिजाइन किया, मैं उसको कम्युनिकेट नहीं करता। कई बार तो लोग, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ सिटिंग इन द डिसिप्लिनरी कमेटी, ऐसे बहुत केसेस आते हैं, वो कहते हैं जी इसने तो रिजाइन किया था, मुझे इससे कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत थी। तो उसको कई बार मैंने ये बताया कि भाई इसी से तो ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत थी। किसी की कंपनी ने अपने आप बदल दिया वो तो बात अलग है, भाई उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने बदल दिया। यहाँ पे उसने रिजाइन किया। रिजाइन कौन करता है आजकल? कोई करता है रिजाइन? कोई बता दो कि रिजाइन करता हो कहीं पे, क्योंकि आज कोई 5000 का क्लाइंट छोड़ने को तैयार नहीं है, और कोई 5 लाख का ऑडिटर, 5 लाख, और इस कंपनी की फीस तो 1.20 करोड़ है।
और अगर वहां पे सपोज कीजिए ऐसी कंपनी में अगर किसी ने कम्युनिकेट ना किया हो तो क्या मतलब है कि वो रिजाइन किया? अरे रिजाइन किया ऐसा कारण होगा कि वो साइन नहीं कर सकता होगा, वो आपको ये बता के जाएगा कि भैया तू भी इस पचड़े में मत पड़, तेरे पे कलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कोरोना में लोग मास्क पहन के घूमते हैं, ये जो मेरा कंडक्ट है इसके लिए मुझे कहीं लिखने की जरूरत थोड़ी ना होनी चाहिए कि भैया कम्युनिकेट करो पिछले ऑडिटर से। ये तो हमने लिख दिया पार्ट 1 शेड्यूल 1 में, परंतु एक मुझे बात बताइए, कहीं लिखने की जरूरत होनी चाहिए कि जब पुरान आप नया ऑडिट लें तो पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेट करें। मेरे ख्याल में एक नॉर्मल फिनोमिनन होना चाहिए कि भाई मैं पिछले ऑडिटर से पूछ लूं, एक तो तेरी फीस तो नहीं बची हुई। हमें लॉ बनाना पड़ा काउंसिल में बैठ के कि अगर किसी की ऑडिट फीस बची हुई और आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो तो देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी अगर हम सद्भावना रखते आपस में, बाकी छोड़ दीजिए। अगर मैं सिर्फ सद्भावना रखता आपस के अंदर कि भाई जो पिछला ऑडिटर जा रहा है कम से कम उसकी फीस तो दिलवा दूं, गरीब आदमी की मेहनत की हुई है उसने, हमने नहीं रखी ये सद्भावना, इसलिए मुझे ये लॉ बनाना पड़ा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं मुझे लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ये लॉ बनाने की क्या जरूरत है प्रमोद जी या सुभाष जी भी दिख रहे हैं मुझे, ये कहीं लॉ बनाने की जरूरत है मुझे कि मैं ये कहूं एंड a chartered accountant should do his act with due diligence? मुझे तो नहीं लगता कहीं बनाने की जरूरत है। ये तो नॉर्मल कोर्स में है कि भाई अगर मेरे पास कोई काम आया है तो मैं वो सब उस तरीके से करूंगा जो कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल को करना चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ ऑडिट के अंदर कि भाई मैं अपने घर की अगर पुताई भी करवाऊं ना, सिर्फ व्हाइट वॉश करवाऊं और उसका रेट फिक्स करूं क्यूबिक फीट के हिसाब से, तो जब उसको पेमेंट करने लगूं तो क्या करता हूं, उसको मापता हूं, उसकी क्वालिटी देखता हूं, और अगर उसकी क्वालिटी में डेफिशिएंसी होती है तो वो डिडक्शन करता हूं, और उसमें अगर एरिया ज्यादा मापा होता तो उसको ठीक करता हूं। जब अपने घर के लिए ये करता हूं तो जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं जहां पे इतने स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है वहां क्यों नहीं देखता भाई? देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए। मुश्किल ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए पर हमें ये लिखना पड़ा। We had to codify this कि भाई एक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप ड्यू डिलिजेंस नहीं बरतोगे तो आप पे एक्शन हो सकता है, देन यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट। हमें तो ये भी कोडिफाई करना पड़ा कि इफ यू डू समथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है कि आप टीवी में बैठ के जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हो उसके अगले दिन इंटरव्यू दे दो कि भैया ला 6% ला, 10% ला, 15% ला, तेरा मैं काम करवाता हूं। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ प्रोफेशनल जॉब नहीं कर रहे हो परंतु आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और उसके बावजूद ये काम कर रहे हो तो दिस इज अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और स्टिंग ऑपरेशन में आप पकड़े जाओ। दैट इज व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू। हमारे यहाँ तो पहले ऐसे ऐसे केसेस आए, मैं आपको ये बता सकता हूँ 2001 का केस है, दिल्ली का है, शादरा साइड का केस है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वाइफ ने केस फाइल किया कि जी मुझे रोज मारता, गालियां देता, और जब वो हमारे सामने अपीयर हुआ तो हमें क्लियर था कि ये रोज पिटता इससे शाम को, परंतु वो बेचारा प्रोड्यूस नहीं कर पाया एविडेंस। वो प्रोड्यूस कर गई, हमने उसको गिल्टी किया। और गिल्टी किसका किया? अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो काम नहीं किया उसने। तो कभी कभार मैं ये बोलता हूँ कि ये हैजर्ड है जब एक ही प्रोफेशन की लड़की या लड़के से वो करते हो ना शादी, तो ये भी हैजर्ड है। उसको पता होता है यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट क्या, तो ध्यान से किया करो ये भी काम। बेसिकली जब चुनते हो अपना लाइफ पार्टनर उसमें भी ये जरूरी है कि भैया टेक केयर कि कौन सा चाहिए लाइफ पार्टनर। दूसरे को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता होना चाहिए, अगर उसे पता तो फिर बहुत सारी और बीमारियां इसके अंदर। एनीवे, कमिंग ओवर टू द न्यू कोड ऑफ एथिक्स। मैंने आपसे पहले बोला कि इस कोड ऑफ एथिक्स में एक चीज जो है वो ये है कि भाई 3 वॉल्यूम्स हैं। 3rd वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस ये है
कि अब हम ये बताने लगे लोगों को भाई किस किस तरीके से लोग गलतियां करते थे और उन पे क्या एक्शन हुए। मुझे अभी तक याद है व्हेन आई टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट, तो हमने तो वेबसाइट पे डाल दिया था इंस्टीट्यूट के कि पिछले 3 साल में 123 लोगों पे, मुझे अभी तक फिगर याद है कि 123 लोगों को हमने पिछले 3 साल में गिल्टी करार दिया। मुझे पता नहीं मोदी जी कहां से वो फिगर दे गए थे कि इतने लोगों में सिर्फ एक्शन हुआ। हमने तो वेबसाइट पे डाला था डिस्पाइट सम ऑपोजिशन फ्रॉम द काउंसिल मेंबर्स की, ये क्यों डालना चाह रहे हो। मैं ये कहता हूँ अगर इंस्टीट्यूट ने कोई अच्छा काम किया तो डाल दो ना कि भाई हमने अपने मेंबर्स को गिल्टी भी किया हुआ, नहीं तो पब्लिक को ये इंप्रेशन है हम अपने भाइयों को कुछ करते ही नहीं बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। अगर सिर्फ नॉमिनेशन होते हो तो वो झगड़ा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होते हैं इसलिए झगड़ा है। बट वी होस्टेड इट, उसके बाद लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। आज की डेट में समस्या सबसे बड़ी ये है, मेरे पे केस फाइल कौन करता है, ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात करता हूं तो मुझे ये आपको बताना जरूरी है, आगाह करना जरूरी है कि आप किस पर रिलाई करें और किस पर रिलाई ना करें। मैक्सिमम केसेस मेरे ऊपर फाइल हो रहे हैं जब दो पार्टनर्स आपस में झगड़ा करते हैं, फर्म के पार्टनर नहीं जिनका आप ऑडिट करते हैं, उनमें जब कभी झगड़ा होता तो उनमें से कोई पार्टनर उठा के सबसे पहले मेरे पे केस फाइल करता। कंपनी के 2 डायरेक्टर या 2 शेयर होल्डर जब आपस में झगड़ा करते हैं तो मेरे ऊपर केस फाइल करते हैं। अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, इस वक्त सदर्न रीजन में हो, तो कभी किसी मठ का ऑडिट मत लेना, क्योंकि मठ वालों में जब आपस में झगड़ा होता, मठ, क्योंकि मठ पे कंट्रोल चाहिए ना, आपको पता और क्यों चाहिए मठ पे कंट्रोल, पांड्यास को कंट्रोल क्यों चाहिए, हमें सबको मालूम है क्यों चाहिए। जब एक दूसरे से झगड़ते हैं तो सबसे पहले कंप्लेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की, पता सबको होता है कि किसने क्या क्या गड़बड़ कर रखी है। देखो पार्टनर को भी पता होता है, डायरेक्टर को भी पता होता है, जब तक गोइंग इज गुड सबको सब मलाई ले रहे हैं, और जब गोइंग इज नॉट गुड तब सबके सब सबसे पहला हथियार कौन है उनका, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आप बॉम्बे में हो तो किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट मत करना, कोई ना कोई मेंबर सोसाइटी का डिस्ग्रंटल्ड रहता, कोई कहता मेरे को जो मेरे वैकेंसी चार्जेस थे उसके पीरियड में ज्यादा चार्ज कर लिया, कोई किसी और वजह से खफा रहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले उसकी गिरफ्त में आ जाता। यहाँ आजकल मैक्सिमम केसेस हमारे पास आ रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, सीबीआई से, बैंक्स से, कंकरेंट ऑडिट। हमें बहुत शौक है कंकरेंट ऑडिट करने का। अगले 5 साल में यही एक ऑडिट है जिसमें मैक्सिमम केसेस फाइल होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप देखते रहिए इस बात को। मैक्सिमम केसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, किसी ना किसी ब्रांच में कोई ना कोई फ्रॉड होता ही रहना, कोई ना कोई अकाउंट एनपीए होगा जो कंकरेंट ऑडिट ने क्लासिफाई नहीं किया होगा एनपीए। ये सब वो एरियाज हैं जहां पे हमें मार पड़नी है, तो जितना हम बच के चलेंगे उतना अच्छा है, जितना नहीं बच के चलेंगे उतना गड़बड़ में है। तो ये जो नया कोड ऑफ एथिक्स आया इसमें कम से कम देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही है, बेसिक प्रिंसिपल्स तो वो कहता है जी देखो आपकी इंटीग्रिटी ठीक होनी चाहिए, ये कहीं लिखने की जरूरत थोड़ी ना कि इंटीग्रिटी ठीक होनी चाहिए, हम कहते हैं भाई इंटीग्रिटी तो ठीक होनी चाहिए आदमी की, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो कहता आप इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने तो जरूर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, पर इंडिपेंडेंस आए कहां से? क्लाइंट नहीं मुझे अपॉइंट करना है, क्लाइंट ने मुझको फीस देनी है, पर कोड ऑफ एथिक्स तो ये कहता है कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट यस टू एन एक्सटेंट एक लक्ष्मण रेखा तो ड्रॉ करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंस के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि भाई इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर ले इसके बियॉन्ड नहीं करूंगा कभी भी। फिर वो कहता है आपको ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, इसका मतलब कि प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, कुछ भी बायस नहीं होना चाहिए क्लाइंट के प्रति, ना तो आप उसको फेवर करने के मूड में हो ना आप उसके अगेंस्ट जाने के मूड में हो, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में।
बाकी चीजें जो प्रिंसिपल्स हैं वही रखे हुए उन्होंने, कोई नया प्रिंसिपल नहीं लेके आए इस नए कोड ऑफ एथिक्स में भी। आप ऑब्जेक्टिव भी हो, आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप इंटीग्रिटी के भी हो, आप कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करेंगे कि जो क्लाइंट आपका है, जिसका आपने काम किया, उसकी इंफॉर्मेशन आप दूसरे क्लाइंट को नहीं देंगे, किसी और व्यक्ति को नहीं देंगे। और अगर आप देते हैं तो यू हैव ब्रीच्ड द ट्रस्ट एंड देन यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर केस। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी, फिर वो कहता है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। एक तो प्रोफेशनल बिहेवियर ये है कि भाई मैं काम प्रोफेशनल की तरफ से करूं, और दूसरा ये है कि अगर मेरे लोगों को ये पता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या प्रोफेशनल हूं, तो मेरा पब्लिक में भी कंडक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो शोभनीय हो वही होना चाहिए हर सूरत में। वो अदर मिसकंडक्ट में भी फंसता और मिसकंडक्ट में भी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी फंसता। एज ए प्रोफेशनल आई शुड बी डूइंग professional work in a professional manner, and the other thing is that I should not be behaving in a manner which is unprofessional in nature. Both ways this particular aspect is being taken care of. So what I am trying to tell you is ये सब प्रिंसिपल्स वहीं के वहीं हैं जो पहले थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस पूरे कोड ऑफ एथिक्स में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, और वो ये अच्छी हुई है कि चाहे जो पहले हम मेंबर्स इन प्रैक्टिस के ऊपर ही सिर्फ चीजें लागू थी, वो अब सब चीजें मेंबर्स इन सर्विस के ऊपर भी लागू हो गई। अब ये भी कहा जाता है भी जो मेंबर इन सर्विस है उसको भी ऑनेस्ट होना चाहिए, वो भी आदमी इंटीग्रिटी का होना चाहिए, उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, उसको भी प्रोफेशनल बिहेवियर देना है। अब सिर्फ जो मेंबर प्रैक्टिस में है सिर्फ उसी के लिए लागू नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, नो, अक्रॉस द बोर्ड फॉर दैट मैटर, इंक्लूडिंग द मेंबर्स इन सर्विस। ये थोड़ी ना कि मेंबर इन सर्विस तो कमीशन लेता रहे वेंडर से और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में वो बेचारा काम करता रहे, ये नहीं हो सकता। आई विल डील विद सम अदर एस्पेक्ट्स आल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेलिब्रेशंस। एक उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ थ्रेट्स हैं हर मेंबर को व्हेन यू डू सर्टेन वर्क्स, पर्टिकुलरली जब आप एश्योरेंस का काम करते हैं तो आपको कुछ थ्रेट्स रहते हैं। पहला थ्रेट उन्होंने बोला कि आपको सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट है, आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कहीं पे। वो क्या है? वो ये है कि आपकी मैडम जो है वो किसी कंपनी में एमडी हैं और मेजर शेयर होल्डर हैं, आप उसी के ऑडिटर हैं, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही। आप अगर उसका ऑडिट करेंगे तो क्या आप उसकी गलती निकालेंगे जब आप रिपोर्ट देंगे? यही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए कि आप वो ना कर पाए जो आप करना चाहते हो एज एन ऑडिटर। आपके पिताजी की कंपनी हो, आपके भाई की कंपनी हो, आपकी सिस्टर की कंपनी हो, आपके बेटे की कंपनी हो, आपकी बिटिया की कंपनी हो, मतलब कि उन ऐसी संस्थाओं में अगर आप ऑडिटर बनते हैं तो आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। भाई आप सेक्शन 141 भी पढ़ें तो 141 भी तो कहता है ना कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है बियॉन्ड ए पर्टिकुलर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो उसमें आप ऑडिटर नहीं बन सकते। यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एज एन ऑडिटर। व्हाई? द रीजन इज सिंपल कि अगर मेरे पास उस कंपनी के सपोज करो 10% शेयर हैं तो मैं ही ऑडिटर हूं उसका, या मेरी वाइफ के पास शेयर्स हैं या मेरे भाई के पास शेयर्स हैं और मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूं, तो मेरी कोशिश क्या होगी? मेरी ये कोशिश कभी नहीं होगी कि शेयर का प्राइस डाउन हो जाए मार्केट में मेरी ऑडिट रिपोर्ट की वजह से। मेरी कोशिश कभी ये नहीं होगी कि मैं इसमें प्रॉफिट ना डिक्लेयर कर पाऊं कि जिनको डिविडेंड ना मिले, और अगर खुद होल्ड किया हुआ तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे 141 में तो वो है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात वहां पे भी है। अगर किसी क्लाइंट ने मेरे लिए गारंटी कर रखी है किसी लोन में
तो मैं उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे सकता हूं क्या? या मैंने किसी क्लाइंट से बोरोइंग कर रखी है तो मैं उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे सकता हूं क्या? द आंसर वुड बी नो। तो मैं अपने आप को उस स्थिति में क्यों डालूं जहां पे विरोधाभास हो, जहां पे विरोधाभास हो? तो यही बात है कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि प्लीज अंडर ऑल दी सर्कमस्टांसेस मेक श्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राकेश जी, रमन जी का म्यूट कीजिएगा। राकेश जी, विनीत जी जो भी देख रहे हैं, रमन जी का म्यूट कीजिएगा। 40 में जो है ना राधा कृष्णन को गो हेड दिया है। तो make sure that you are not in a position where you have a conflict of interest vis-a-vis your professional duties. दूसरा उन्होंने कहा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब बड़ा साफ है कि अगर मैं ही कोई उनका ऐसा काम कर रहा हूं जिसका मैंने ही ऑडिट करना है, मेकर और चेकर कंसेप्ट की बात है बेसिकली, कि मैं ही मेकर हूं और मैं ही चेकर बन जाऊं, तो मैं उस पर कभी रिपोर्ट दे ही नहीं पाऊंगा अपनी किसी भी कारण से। कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको कि मैंने टैक्स का प्रोविजन करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है टैक्स का, और मैंने उनसे कहा जी मैं आपको ओपिनियन दे देता हूं, या मेरी वाइफ से ओपिनियन ले लीजिए उस मामले में। मेरी वाइफ सपोज कीजिए कंपनी सेक्रेटरी है, उससे आप किसी कंपनी लॉ का ओपिनियन ले लीजिए। देन आई एम गेटिंग इनटू ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट पोजीशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है बेसिकली। परंतु इसमें मैं प्रमोद जी का इनपुट जरूर चाहूंगा बाद में। हमने ये परमिट कर दिया है इस बार कि सपोज कीजिए मैं ऑडिटर हूं, तो ये तो क्लियर है कि मैं उसका टैक्स का ओपिनियन मैं नहीं दे सकता उसका, और अगर टैक्स का ओपिनियन दूंगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में फंसा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु वो ये कहता है कि आपका पार्टनर ओपिनियन दे सकता है, आप असेस कर लीजिए कि आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट है या नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ की प्रैक्टिस तो बड़ी क्लियर है कि भाई फीस किसको जा रही है? फीस तो फर्म को जा रही है, और फर्म को जो फीस जा रही है उसमें शेयरिंग भी हो रही है, और जब शेयरिंग हो रही है तो शेयर तो मुझे भी मिल रहा है उस ओपिनियन का। ऐसा तो नहीं कि मुझे शेयर नहीं मिल रहा। यहाँ हमारे यहाँ ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी प्रैक्टिस तो है वैसे। ये डबल कल कर लियो ना, आज भी है, कल कर ले यार, मैं गाड़ी में कहाँ देखता रहूंगा। राकेश जी जरा एक बार उनको फोन कीजिएगा। मनोज जी के बंद कर दिया सर, अनम्यूट कर दिया। आप प्लीज इसको देखते रहिएगा एक बार ना, जी चोपड़ा सर के अलावा जिसका भी है ना, एक बार जी राकेश गुप्ता जी आप देखते रहिए। जी जी। हमारे यहाँ पे इस तरीके की प्रैक्टिस तो हो सकती है, या इस तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है कि वेस्ट पटेल नगर की फीस तो तुम लेते रहना और पीतमपुरा की फीस मैं लेता रहूंगा। ये पार्टनरशिप्स तो हैं। ये जो कुछ मर्जर्स हुए ये इसी किस्म के मर्जर्स हैं। परंतु ये तो नहीं हो सकता कि एक ही फर्म में जेन्युइनली जहाँ पे पार्टनर्स हैं 5 या 6, कि वो ये कहे भी टैक्स की फीस तो मेरी और ऑडिट की फीस तेरी है। फीस तो अल्टीमेटली शेयरिंग, देखो टेक्निकली तो फीस शेयरिंग सभी की होनी है। तो मैं प्रमोद जी से यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमने एक परमिशन सी दे रहे हैं, हम ये अलाउ करने की बात कर रहे हैं कि भाई आप खुद ओपिनियन ना दे पाए परंतु आप अपने पार्टनर से ओपिनियन ले सकते हैं किसी से। मेरे ख्याल में ये विरोधाभास है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली फीस तो, अगर आप नफरा की पोजीशन देखें आज की डेट में, अगर मैं सही बात में, तो ये जो अभी बीएसआर वाला केस आया उसमें उन्होंने तो उधेड़ दिया बिल्कुल का बिल्कुल कि अगर आपकी ग्रुप की कंपनी थी, यहाँ तो मतलब कि उन्होंने ये बोला कि आपके जो बाकी अपने ग्रुप के केपीएमजी की बाकी जो एंटिटीज थी वो उनको सर्विसेज दे रही थी बेसिकली, और बीएसआर वाले ऑडिटर थे, तो उन्होंने तो कहा कि यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर्स बेसिकली। तो मेरे अपने हिसाब से इट्स ए सीरियस इशू। मेरे ख्याल में हमें ये परमिट नहीं आ गया। यहाँ तो हम ये कहें भाई तुम कुछ भी करो, या फिर ये कहेंगे कि फर्म में नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। द फर्म कैन नॉट बी अलाउड, कोई भी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अलाउड टू गिव एन ओपिनियन एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज अल्टीमेटली द प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड बाय एवरीवन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस।
तो मेरे ख्याल में एक ये विरोधाभास अपने आप में है। एक उन्होंने और बड़ा इसमें अच्छी या बुरी का मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु इसमें मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा टैक्स रिप्रेजेंटेशन तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई रिव्यू का थ्रेट नहीं है लंबा चौड़ा, अगर आप ऑडिटर हैं। परंतु अगर आपने अपील करने जाना है तो ये आप सोचिएगा कि आपने अपील करनी है या नहीं करनी है। अपील में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज कीजिए आपने टैक्स में आपने ऑडिट किया, आपने टैक्स में केस को रिप्रेजेंट किया, उसमें कुछ डिसअलाउंसेस हो गए किसी वजह से, तो वो ये कहता है कि ये सोच लेना कि रिप्रेजेंटेशन तक तो ठीक है, परंतु रिप्रेजेंटेशन के बियॉन्ड आपने जाना है या नहीं जाना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आप जरा मद्देनजर रखिए। आपको बैन नहीं किया उन्होंने, कहीं बाहर नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि ये थ्रेट है अपने आप में, और उस थ्रेट को जरा इमेजिन कर लीजिए किस तरीके का थ्रेट है। वो मैं आपको बता देता हूँ उनकी मंशा क्या है। आई पर्सनली कैन मेक आउट व्हाट इज द इंटेंशन। इंटेंशन बड़ी साफ है। इंटेंशन ये है कहने की उनकी कि सपोज कीजिए आपको एडिशन हुआ फॉर अनवाउच्ड एक्सपेंसेस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, या एडिशन हुआ फॉर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो ठीक नहीं है, इसके बदौलत उसने कोई एडिशन कर दिया। ये तो रिप्रेजेंटेशन स्टेज तक थी बात। आप चले गए अपील में, और अपील में आपने आर्गू किया, और अपील में वो सस्टेन हो गया कहीं पे, तो ये तो रिफ्लेक्शन आपके ऑडिट के ऊपर है पूरी की पूरी, आप माने या ना माने किसी भी सूरत में। क्योंकि अगर कोई अनवाउच्ड एक्सपेंसेस का एडिशन सस्टेन होता है और आप ही अपीलेंट हैं, बेसिकली यू आर द काउंसिल इन द अपील, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर के बेसिस पे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपने ठीक नहीं डिपिक्ट किया हुआ है, आपने अंडर सप्रेस कर रखा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को, और उसके बेसिस पे कोई एडिशन हुआ और आप अपील में गए और आप अपील हार गए बेसिकली, तो ये तो रिफ्लेक्शन आपकी ऑडिट वर्किंग पे है सीधी सीधी, आप माने या ना माने इस बात को। तो भाई इन द पीरियड्स टू कम ये कहा जा रहा है कि आपको मना नहीं किया, पर वो ये कहता है आप ये जज कर लीजिए, असेस कर लीजिए अपने आप को कि आपको कहीं इसका थ्रेट तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो और कल वो सस्टेन हो जाता तो वही क्लाइंट आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, देयर हैज बीन ए केस अर्लियर इन द इंस्टीट्यूट, बहुत पुराना है, जबकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया, केस रिप्रेजेंट करने गए बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और वहां पे ऑर्डर शीट के ऊपर साइन करके आ गए एग्रीड टू एडिशन फॉर अनवाउच्ड एक्सपेंसेस। तो आप बच कैसे सकते हो? ऑडिटर आप हो, अनवाउच्ड एक्सपेंसेस के एडिशन पे आप एग्री करके आ रहे हो, तो ये नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक तो कभी भी जहां पे एडिशन के लिए एग्री करना है, आप अपने नोट शीट पे आपके साइन नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में, ना आपके ना आपके पार्टनर के, किसी के भी। वो साइन हो तो क्लाइंट के होने चाहिए, बाकी तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं ना, भाई मैं ऑडिटर था तो पोजीशन क्या थी। परंतु अगर आप ही एग्री कर रहे हैं तो आई थिंक दैट यू आर जस्ट killing yourself basically. It's a suicidal pact basically to my mind. तो एक तो ये कभी मत करिएगा, और दूसरा ये, अगर कोई वाकई में सब्सटेंशियल एडिशन है बिकॉज ऑफ अनवाउच्ड एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑफ सम टैक्स मैटर्स, और बिकॉज ऑफ सम सप्रेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ये देखिए कि उसमें सक्सीड करने के चांसेस कितने हैं। और अगर आपको ये लगता है कि चांसेस कम है, वो दिल से हमें पता होता है कि क्या होने वाला, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता होता, तो फिर किसी और व्यक्ति से करवा लीजिए अपील, उसको हारने दीजिए, आप मत हारिए अपील को। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और तीसरा थ्रेट उन्होंने कहा इंटिमिडेशन थ्रेट है, कि आप जिस व्यक्ति का ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पे आपके भाई या भतीजा या आपके बच्चा, आपकी वाइफ या आपकी बेटी, आपके सन इन लॉ, सपोज कीजिए जॉब में लगे हुए हैं, और आपको ये लगता है कि अगर मैंने इसकी कलम पे कुछ किया, कलम से कुछ किया, तो मेरे बच्चे की या मेरे रिलेटिव की जॉब चली जाएगी।
वो कहता भैया फिर देख लो अपने आप को। Then there is an intimidation threat. उसको आप एलिमिनेट कैसे करोगे उस इंटिमिडेशन थ्रेट को? I think that's very very important at the end of the day. अगर आपको ये लगता है कि किसी तरीके की इंटिमिडेशन नहीं है और मेरे ये करने से इसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, अगर रिमूव कर भी देगा तो कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गो अहेड, एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। परंतु आप इस डर से उसकी ऑडिट रिपोर्ट खराब नहीं करेंगे क्योंकि आपका बच्चा वहां पे कहीं बहुत हाई पोस्ट पे लगा या आपकी वाइफ हाई पोस्ट पे लगी है, तो फिर वो ये कहता है कि आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट मत करें किसी भी सूरत में। और मैं तो ये कहता हूँ जो हम में से लोग पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, उससे ज्यादा इंटिमिडेशन थ्रेट और कहाँ है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको भी मुझे सोच समझ के करना चाहिए कि मैं करूं या ना करूं एक्सेप्ट। आई हैव टू एलिमिनेट दैट थ्रेट। अगर मुझे ये है कि जी मैं जो रिपोर्ट दूंगा मैं तो बिल्कुल ठीक दूंगा, और दूसरा व्यक्ति कहता है भाई तुझे रिपोर्ट मैं देने नहीं दूंगा, तो भाई उसको आपने सोचना है कि आपने वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ऑडिट को। कोई डॉन है बेसिकली, आप बॉम्बे में किसी डॉन का आपने ऑडिट ले लिया तो आप मनी लॉन्ड्रिंग का लिखेंगे क्या? है हिम्मत लिखने की? अगर नहीं हिम्मत तो ऑडिट काय को ले रहे हो यार? तो फिर ऑडिट लेना नहीं है, और ऑडिट लेके लिखना नहीं है तो फिर तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सीधा सीधा बेसिकली। तो अगर आपने इंटिमिडेशन ही के अंदर रहना है कि भाई मैं ऑडिट में कुछ लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे डर है, तो भैया उसका ऑडिट मत एक्सेप्ट करिए। दैट इज द पॉइंट वन इज ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली। और एक है एडवोकेसी थ्रेट। वो कहता है कि भाई जिस व्यक्ति का आप काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, कम से कम अपने आप को इस पोजीशन में मत डालिए कि हर व्यक्ति को उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दें। सपोज कीजिए जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसी का केस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का लेके आप बैंक के पास चले गए, तो एडवोकेसी थ्रेट तो है सीधा। आप उसके बारे में बुरा तो बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं बुरा, किसी सूरत में नहीं बुरा बोल सकते उसके बारे में, तो कहेंगे जी इससे बढ़िया कोई क्लाइंट ही नहीं है, इसको तो आप लोन दे ही दीजिए आज, क्योंकि इससे बढ़िया कोई मिलेगा नहीं आपको लोन प्रपोजल। इसी तरीके से जब किसी ऑडिटी का पब्लिक इशू आए, सबसे बड़ी बात आपको जो बता रहा हूं, उसमें कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना आपने। ये केस ऑलरेडी है राइस मिल का किसी का, कि ऑडिटर ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कहने लगा जी बहुत बढ़िया इशू है, और बाद में पता लगा कि इसमें कुछ था नहीं, तो फिर तो हो गया काम ना पूरे का पूरा। सो देयर इज एन एडवोकेसी थ्रेट कि आप जिसका काम करें और वो आपको कहे जी मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये नहीं हो सकता यार, ये तो फिर थोड़ा सा इट इज अ फार फेच्ड सिचुएशन टू बी इन। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं। वो ये नहीं कहते कि इन थ्रेट्स के रहते आप ऑडिट मत एक्सेप्ट करें। वो ये कह रहा है, ये पूरा कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा है कि ये थ्रेट्स को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये बता दीजिए सिर्फ। जब मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था ना, तो यहां तक कहा गया इस कोड ऑफ एथिक्स में कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि आपकी फीस तो है 50,000 रुपया, और दिवाली के ऊपर वो आपको 4 गिन्नी देगा आज के रेट की गोल्ड की, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा। कि 50,000 की फीस वाला क्लाइंट आपको दिवाली के ऊपर 4 गिन्नी दे जाए 50,000 रुपए की, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा। वो कहता उसको आप एलिमिनेट कैसे करोगे वो आप सोच लीजिएगा व्हेन यू टेक अप द असाइनमेंट्स। और आप अगर समझते हैं कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आप उसको विद इन टॉलरेबल लिमिट्स ला सकते हैं तो करिए। अब जो भी आगे से पीयर रिव्यूअर आपके द्वारे आएगा, जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से आपके यहाँ पे आएगा, आई एम सो हैप्पी टू सी द पीयर रिव्यू स्टेटमेंट, द रिवाइज्ड पीयर रिव्यू स्टेटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि हर पीयर रिव्यूअर आपसे कई चीजें आगे पूछने वाला है इन थ्रेट्स के बारे में, और वो ये पूछेगा कि आपने अपने इस थ्रेट को एलिमिनेट कैसे किया। कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं वो जिस बैंक का ऑडिट करती हैं उस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं लेने देती किसी एम्प्लॉय को या पार्टनर को, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर इस पार्टनर ने कभी
खर्चा 1 लाख से ऊपर का कर दिया, 5 लाख का कर दिया, 10 लाख का कर दिया और 141 में डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि डेबिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द नेम ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि ये बिजनेस की बात नहीं है। तो यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड एज एन ऑडिटर। सपोज करिए आप डिफॉल्ट भी कर गए, तो ये सब चीजें पीयर रिव्यूअर आके अब आपके द्वारे जब भी आएगा, ही इज गोइंग टू हैव ए लुक एट इट। आई थिंक दैट इज द पॉइंट। और जब आप सर्विस में भी आपको ये सब के सब थ्रेट्स एलिमिनेट करने हैं, कि जैसे सर्विस में अगर मैं हूं, प्रैक्टिस में मैंने बताया कि ऑडिट के बारे में, सर्विस में मैं हूं, मैंने अपनी ही फर्म में जहां पे मैं ऑडिट, जहां पे मैं CFO हूं, वहां पे मैंने अपने भाई को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को कहीं पे वेंडर लगवा दिया, तो मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि बाकियों को तो पेमेंट जाएगी 45 दिन बाद, इनको पेमेंट जाएगी 25 दिन बाद, ये हो सकता है 10 दिन बाद चली जाए, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। बाकियों का रेट हो सकता है कि 10 रुपए 50 पैसे जाता हो, इनको रेट मेरा 10 रुपए 70 पैसे हो जाए, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा बेसिकली। सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी यही है कि मैं अपने वाइफ से, अपने ब्रदर से, किसी और से ओपिनियन लेके करना शुरू कर दूं, वो नहीं हो सकता। इन सर्विस मैं किसी वेंडर के साथ ये टर्म्स, मतलब कि वेंडर ने मुझे, दिवाली पे आ गया वेंडर मेरा और मेरे को दे गया आगे 5 लाख का कोई सिक्का विक्का, वो conflict of interest सीधा सीधा even when you are in service. So you have to make sure that you don't have a conflict of interest when you are in service. Confidentiality आपने वहां पे भी मेंटेन करनी है, सर्विस के रहते भी, बेसिकली उसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये जितने भी थ्रेट है, एडवोकेसी का थ्रेट भी है, आपके इंटिमिडेशन थ्रेट है। आप ये कहें कि साहब मैं अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे काम कर रही है, अगर मैं कुछ करूंगा, सपोज कीजिए मैंने इसको ये कहा भाई ये अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरीके से नहीं इस तरीके से होगी, और वो कहे अपनी वाइफ को, तेरी वाइफ की जॉब कल से टर्मिनेटेड है, तो मेरा डेफिनेटली एक थ्रेट है, मेरे को इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो जहां जहां पे ये चीजें हैं, वो कहता है वो थ्रेट्स आपको एलिमिनेट करना है, चाहे आप प्रैक्टिस में हैं या आप जॉब्स में हैं। और अगर एलिमिनेट नहीं कर पाते, 100% एलिमिनेशन नहीं होगी, पर वो कहता है कहीं ना कहीं पे विद इन टॉलरेबल लिमिट्स उसको लेके आइए। व्हाट इज टॉलरेबल लिमिट, ये कहीं डिफाइन नहीं, परंतु टॉलरेबल लिमिट्स का मतलब यही है कि जहां पे आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होगी, आपकी इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, तब ये मान लिया जाएगा कि थ्रेट इज विद इन ए टॉलरेबल लिमिट। सिंपल सी बात इतनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट इस पूरे कोड ऑफ एथिक्स में है, विच इज मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन, तो वही है, अभी तो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, अभी मेरे ख्याल साल, ये तो नहीं बताया कितने साल के लिए किया, पर यह कहा कि पोस्टपोन कर दिया। दैट इज कॉल्ड नोक्लर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। देखिए मेरा एक एस्से है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 250, और वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मेरा ये कहता है कि अगर मैं किसी फाइनेंशियल लॉस की नॉन कंप्लायंस देखता हूं एज एन ऑडिटर, और वो मटेरियल है, तो मुझे अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। सपोज कीजिए बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट के तहत एलोकेबल सरप्लस बनता 20% का, कि 20% बोनस होना चाहिए, और मैं दिए जा रहा हूँ 8.33%, तो इट इज रिक्वायर्ड दैट आई मस्ट क्वालिफाई माय रिपोर्ट। पर जो सबसे ज्यादा वायलेटेड लॉ है वो है प्रोविडेंट फंड का। मुझे पता एम्प्लॉइज तो 20 से ऊपर है यहाँ पे, या उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है जिसपे कि मुझे ईएसआई और प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है। मैं बात ही नहीं करता इसके बारे में कि प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आई डोंट इवन लुक एट इट। एसए 250 मेरा ये कहता है कि मुझे देखना है, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल लॉ है ना, इट इज नॉट समथिंग नॉन फाइनेंशियल लॉ।
प्रोविडेंट फंड कितने लोगों पे लागू होता है ये तो मुझे मालूम है। मैं कहीं पे ग्रेचुटी देनी हो, ग्रेचुटी एक्ट, मैं कहूँ नहीं नहीं ग्रेचुटी एक्ट का मुझे नहीं पता। ग्रेचुटी एक्ट तो पता ही है ना मुझे क्या है, ग्रेचुटी बनती है या नहीं बनती है। और अगर बनती है और मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो सपोज कीजिए कहीं पे 1 करोड़ का वेज बिल हो और लागू हो मेरा प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसके ऊपर करीबन जो मेरी कॉस्ट आती है वो 20 से 24% की आती है प्रोविडेंट फंड ईएसआई वगैरह के मिलाकर। सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपया ये इस पे मेरी वेजेस या इस पे जो मेरा प्रोविडेंट फंड है 1 करोड़ की वेजेस के ऊपर लागू होना चाहिए, तो कितना मेरा लागू होगा? करीबन 20 से 24 लाख का खर्चा अंडरस्टेटेड है। अगर मेरा प्रॉफिट 15 लाख रुपया साल का, तो इज इट ट्रू एंड फेयर व्यू? ये तो मेरा SC 250 एग्जिस्टिंग ही मांग रहा मेरे से करने को, कर नहीं रहा हूं मैं, ये तो मैं बता सकता हूं। हम कारों में ये तो लिखते रहते हैं कि कोई मेरा जो अनडिस्प्यूटेड ड्यू है, अनडिस्प्यूटेड ड्यू का क्या मतलब है? ये भी अनडिस्प्यूटेड है कि प्रोविडेंट फंड लागू है या नहीं है, इस पे मैंने कभी गौर नहीं किया। None of us really looks at it. ये भाई लॉ अनडिस्प्यूटेड, लॉ में डिस्प्यूट कहाँ है कि भाई इस नंबर के ऊपर मुझे प्रोविडेंट फंड अप्लाई करना, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, परंतु मैं वो देखता नहीं हूं, आई लीव इट बेसिकली। और नॉकलर इससे 10 कदम आगे जा रहा। नॉकलर में कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा, आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा कि अगर कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ब्राइबिंग हो रही है, ब्राइब का नाम आती तो वैसे ही रोंगटे खड़े हैं, ये आप इनकम टैक्स में तो जाती हैं हम सब के सब, कि किसी तरीके की ब्राइबिंग हो रही है। और यही नहीं, वो ये कहता है कोई भी मेन लॉ ऑफ द लैंड जो कि फंडामेंटल है टू कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, उसकी अगर ब्रीच हो रही है तो वो आपको पहले तो मैनेजमेंट को बतानी है कि भाई ये ब्रीच हो रही है, इसको रेक्टिफाई करो। अगर मैनेजमेंट रेक्टिफाई नहीं करती तो जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके पास जाके कंप्लेंट करनी है और रिजाइन भी करना। आपका रेजिग्नेशन इस बात का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताएंगे नहीं। आप ये कहो जी मैंने तो रिजाइन कर दिया था, वो कहता ना, एक बार आपकी नॉलेज में आ गया रिजाइन, पहले तो मैनेजमेंट को बताओ कि भाई इसको ठीक करो। मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो रिजाइन तो करो ही करो, पर उन अथॉरिटीज को भी जाके बताओ कि भाई ये हो रहा है यहाँ पे, ये कितनों में हम में दम है, ये बता दो आप। मैं तो सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जितने भी आपके रियल एस्टेट वाले थे भाई, ये जितनों ने राजेंद्र नगर में या बाकी जगह पे वो 100 गज का 50 95 गज का प्लॉट के ऊपर लेके वो बनाए हैं, कवर तो हो सकता था X%, कवर किया पूरे का पूरा, कर नहीं सकता, अंडर नॉकलर तो नहीं हो सकता। और अगर आप उसका ऑडिट कर रहे हो तो आपको रिपोर्ट करना म्युनिसिपल अथॉरिटीज को। वो ये कहता है कि अगर आपका नक्शा पास है सपोज कीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का और आपने बना दिया 15,000 स्क्वायर फीट और भेज दिया, तो वो कहता है जाके रिपोर्ट करा भाई म्युनिसिपल अथॉरिटीज को। पहले तो मैनेजमेंट को बोलो कि इसको गिराओ, और मैनेजमेंट ना गिराए तो जाके अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो। तो ये प्रैक्टिकल है या नहीं मुझे पता नहीं, पर कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है। आज आप उसको कितना भी डेफर कर लें, इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा सूनर और लेटर। आप इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल कंप्लायंस की बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं वी आर इन कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। आप इसको साल भर रोक लें, 2 साल रोक लें, इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा किसी वक्त। और जब इंप्लीमेंट होगा तो क्या होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इससे आगे 2 कदम और चला जाता हूं। मैं 2 कदम आगे ये जा रहा हूं कि आपने एक चेक इशू किया 1 करोड़ रुपए का, और ये कहा जी हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई किसी से,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 5 पेज की, और आपको क्लियर नजर आ रहा कि ये 1 करोड़ वाली है ही नहीं, ये तो 10,000 वाली भी नहीं है। तो आपकी सीधी सीधी ड्यूटी अंडर नोकलर है, क्योंकि इसमें कोई और चार्ज लग रहा सीधा सीधा बेसिकली। और ऐसे केसेस तो मतलब कि डे इन डे आउट प्रॉब्ली समवन कैन एनकाउंटर। व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज, पहली बात तो ये कि क्लाइंट को ये बताना शुरू करें भाई ये आ रहा। मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि चैम्बर्स के पास जाके ये बोले कि भाई ये आ रहा है, और अगर ये आ रहा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल आप बोलेंगे और ऑडिटर की नहीं है, सिर्फ सीएफओ की भी है, क्योंकि ये लागू सीएफओ के ऊपर भी है, ये जीएम फाइनेंस के ऊपर भी लागू है। इसका मतलब ये जो मेंबर्स इन सर्विस है उनके ऊपर भी ये लागू है। उनको भी ये कहा गया कि आप मैनेजमेंट से ये बोलो कि मत करो, और मैनेजमेंट नहीं मानती तो रिजाइन कर दो जॉब से। अब है तो मुश्किल काम, इसमें तो कोई शक नहीं, परंतु मुझे लगता नहीं कोई चाह रहा। इसमें एक आर्गुमेंट ये आया कि पर्टिकुलर जो मेंबर्स इन सर्विस थे उनका ये आर्गुमेंट था कि साहब आप अगर हमें ये कहेंगे कि ये करना है, और एमबीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह पे तो ये लागू नहीं है, तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो खत्म हो जाएंगी सीएस की, क्योंकि मैनेजमेंट वाले कहेंगे यार यही ठीक है, दूसरे वाले इनको तो रिपोर्ट नहीं करना, इनको रिपोर्ट करना। मेरा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और यहाँ पे प्रमोद जी का इनपुट चाहूंगा बाद में। ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है अगर इंस्टीट्यूट बेचना चाहे। मैं सरकार से जाके ये बोलूंगी सिर्फ मेरा कोड ऑफ एथिक्स ऐसा है, सिर्फ मेरा और मेरा, जो सरकार के पक्ष में ये बात कहलवाने को तैयार है अपने मेंबर से, और किसी का भी कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहता, ना एमबीएस का, ना कॉस्ट अकाउंटेंट्स का, ना कंपनी सेक्रेटरीज का। और अगर वो ये नहीं कहता है तो भैया सीएफओ की पोजीशन पे मैं ही बनता हूं सिर्फ। प्लीज गिव मी द पोजीशन ऑफ द सीएफओ, बिकॉज माय कोड ऑफ कंडक्ट is favoring the government, my code of conduct is favoring the society, whereas the others, MBA का तो कोड ऑफ कंडक्ट कोई है ही नहीं, सीधी सी बात ये है। और कंपनी सेक्रेटरीज और आईसीडब्ल्यू वाले इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कभी भी, ये भी आपको बता सकता हूं मैं। और हमें तो क्योंकि हम ISSB से वो है, निर्धारित है इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से, ISBA से, तो इसलिए हम वहां पे आए हुए हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है प्रमोद जी, इसको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाइए, मेक इट एज ए यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोफेशन, and then try to see that more opportunities are created only because of this in these jobs. परंतु ये भी फैक्ट है कि जो लोग जॉब्स में होंगे उनके लिए शायद इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर पाना इतना आसान ना हो। वैसे तो प्रैक्टिस वालों के लिए भी आसान नहीं होने वाला, परंतु जॉब वालों के लिए तो और भी मुश्किल है। बट वन थिंग गुड विल बी कि अगर सीएफओ को ये पता लग जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे शायद इनवर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, दे मे बी फ्री फ्रॉम सो मेनी डेफिशिएंसीज, बिकॉज अल्टीमेटली ही फाइंड्स दैट दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, जो आज तक सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेरा कहना यह है कि ये अपने आप में डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन आवर हेड भी है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि probably this is a good factor also for the profession. Ultimately, it can become a unique selling point for the profession. परंतु इंस्टीट्यूट इसको इम्प्लीमेंट कब करेगा, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, पर उससे पहले मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ that institute must sell it first to the chambers कि भैया देखो हम कुछ नहीं कर सकते, इस बार ने ये कर दिया है, हमें ये कोड ऑफ एथिक्स इंप्लीमेंट करना है, तो हमारी ये मजबूरी है, तो आप अपने आप ही अपनी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर लें, जो भी आपने करना है, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते अब आपको। तो दिस इज अबाउट नोकलर फॉर दैट मैटर।
क्योंकि जैसे एनवायरमेंटल लॉस का है, मैं तो दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, वो तो इवन अंडर SA 250 भी लागू है। अगर किसी इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल कंट्रोल या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगना चाहिए और वो नहीं लग रहा, तो भाई कभी भी नोटिस आ जाएगा ना टू क्लोज डाउन द बिजनेस। ये तो नहीं कि नहीं आएगा। आफ्टर ऑल अगर हम गंगा को साफ रखने की बात कर रहे हैं या गंगा को साफ करने की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता ना कि हम उसमें फेंकते ही रहें जो भी मन में आए, किसी भी नाले से कुछ भी फेंके। तो अगर वो बचाना है, मतलब कि अपनी दूसरी एनवायरनमेंट को भी बचाना है, तो मेरे ख्याल में पोल्यूशन कंट्रोल का भी एक पॉइंट है। और एनवायरमेंटल का सपोज कीजिए मुझे नोटिस ही आया हुआ कि 6 महीने में लगा लो, नहीं तो हम आपकी यूनिट बंद कर देंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये गोइंग कंसर्न का ही पॉइंट बन जाता अगर मेरे पास पैसे ना हो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने के। तो इन सब बातों को जरा देखते हुए चलें। और जो एक और सिग्निफिकेंट चेंज अभी मेरे ख्याल में पोस्टपोन्ड है फॉर द टाइम बिंग, पर वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा किसी ना किसी अमेंडमेंट के साथ। और वो ये है कि भाई अगर आपकी डिपेंडेंस पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में किसी क्लाइंट के ऊपर 15% से ज्यादा की है, मतलब ये कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपया है और किसी एक क्लाइंट से आपसे के पास 15% से ज्यादा आता, 15 लाख से ज्यादा आता उस क्लाइंट से, तो उस केस के अंदर अगर ये 2 साल तक लगातार चलता है तो आपको उस क्लाइंट को जाके बताना है, द पीपल हु आर चार्ज विद गवर्नेंस इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनको जाके आपको ये बताना है कि भाई मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, आप पे निर्भर हूं, आत्मनिर्भर नहीं हूं, और मैं आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट हूं कि मैं आपसे ऑलरेडी करीबन 15% से ऊपर आपसे आता। ये पहले 40% का क्लॉज था इफ यू आस्क मी, अब ये 15% पे ले आए। मेरा सजेशन ये, और ये कहा गया इसमें कि भाई अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 5 लाख से कम है, 5 लाख तक की है, तो आप पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं सिर्फ इसमें एक ही गुजारिश करना चाह रहा हूं प्रमोद जी से, क्योंकि प्रमोद जी CCM है, मैं पूरे दुनिया में क्या मैसेज दे रहा हूं। अगर मैं 5 लाख तक की रिसीट की बात कर रहा हूं, 5 लाख की रिसीट के अगेंस्ट खर्चा डेफिनेटली हर प्रोफेशनल का करीबन 35 से 40% तो है ही, इससे कम तो खर्चा किसी का है नहीं। अगर 35 से 40% का खर्चा है, सपोज कीजिए 40% का खर्चा है, तो बचा कितना, 3 लाख रुपया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्रोफेशन, मतलब कि लोगों को, कि मेरे प्रोफेशन के लोग 25,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं है जिनकी प्रोफेशनल रिसीट 5 लाख तक की है। हालांकि इस प्रोफेशनल रिसीट में मैंने बैंक ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस वगैरह इंक्लूड नहीं की हुई, परंतु इट इज ए वेरी बैड सिग्नल टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि मेरा मेंबर जो है नेट इनकम उसकी 25,000 रुपया महीना नहीं। आई शुड नॉट। मेरा, हालांकि पहले 2009 में हमने कभी 3 लाख की फिगर ली होगी, उस वक्त इट वाज वेरी लो, टेकन वेरी लो, बट इफ आई एम इंक्रीजिंग इट नाउ, आई शुड इंक्रीज इट टू अबाउट 30 लाख रुपीस नाउ। कम से कम 30 लाख की रिसीट। अब तो निर्मला सीतारमन जी ने भी कह दिया कि GST 40 लाख तक हम नहीं चार्ज करेंगे किसी से, बेसिकली। तो कुछ फिगर इसको रियलिस्टिक 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक की लेके जाएं, बजाय 5 लाख तक के कहने के। उसमें एक तो काफी बचत हो जाएगी लोगों की, और दूसरा ये कि अभी तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की बात की है। इन दी टाइम्स टू कम, अगर हम ये कह रहे हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है, और अगर हम इंडिपेंडेंस अफेक्ट की बात सोच रहे हैं तो फिर ये एप्लीकेबल छोटी फर्म्स पे भी होगा किसी ना किसी स्टेज पे जाके। आज नहीं होगा, कल होगा। एक सजेशन मेरी ये है कि इसमें आप इसको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज पे लागू करें। आप ये कह दीजिए कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी से अगर 5 लाख तक की रिसीट आती है तो उस पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। एक तो ये हो सकता बेसिकली।
दूसरा, इसको आप ये 15% वाले को 30% पे कर दीजिए। और तीसरा ये कि आप ये मत कीजिए कि 2 साल बाद जाके मुझे मैनेजमेंट को बताना कि मैं आप पे निर्भर हूं, आप आत्मनिर्भर नहीं हूं। क्योंकि द मोमेंट आई विल टेल द मैनेजमेंट कि मैं आप पे निर्भर हूं, वो मुझे मिसयूज ही करेगा, अब्यूज ही करेगा। मुझे वो कोई उसका तगमा नहीं देने वाला कि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो। यहाँ तो आप ये कहिए कि भाई 2 साल तक तो आप ये देखो और तीसरे साल आप रिड्यूस करने की कोशिश करो बिलो दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, और आप नहीं कर पाते तो चौथे साल में रिजाइन कर दो। क्योंकि आई पर्सनली डोंट फील दैट इट इज गुड कि मैं किसी मैनेजमेंट को जाके ये कहूँ कि जी मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ किसी भी सूरत में। So I think that is one thing that I wanted to say so far as this particular issue is concerned. और यहाँ फिर आप ये कर दीजिए कि in the first 10 years of the practice it will not be applicable to anybody. Whatever you want to do you can do. परंतु इसका कुछ ऐसा हल निकालिए जिससे maximum number of firms can get out of it basically. और दूसरा ये कि अगर इसमें फंसती हो तो ये मैनेजमेंट को डिक्लेरेशन नहीं होगी, वो फिर उसमें से रिजाइन करने की जरूरत होनी चाहिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ गैप ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, जो भी आप गैप देना चाहें। मैं ये कहूंगा अगर पहले 2 साल में आप जाके मतलब कि बताएं नहीं, अगर तीसरे साल में आप नहीं रिड्यूस कर पाते तो उसमें आप रिजाइन कर दीजिए असाइनमेंट से। दैट विल बी अ बेटर प्रिपोजिशन देन डिक्लेयरिंग इट बिफोर द मैनेजमेंट इन सच केसेस। The next point that one will like to talk about this code of ethics is, प्रमोद जी ये इसमें आपकी मैं वो जरूर चाहता हूं, क्योंकि मैं बीच में तो ये इशू तो बोलना बंद कर दिया था, पर आपको देखा तो थोड़ी हिम्मत से बन गई है बेसिकली। वो ये है कि भाई हमने इस बार ये परमिट कर दिया कि जब आप रिटायर हो जाए काउंसिल से या रीजनल काउंसिल से या ब्रांच से, तो जो मेरा हाईएस्ट पॉसिबल डेजिग्नेशन हो उसके ऊपर मैं वो लिख सकता हूँ कार्ड्स के ऊपर बाद में। ऐसा क्यों, किस लिए चाहिए? हम में से हर व्यक्ति काउंसिल में या रीजनल काउंसिल में या ब्रांच में ये कह के जाता है कि मुझे सेवा करनी प्रोफेशन की। I was the 58th president. Atul ji is the 68th president. Why we should have a right to write down on our visiting cards that I am the past president of the institute? मेरे पास एक डेजिग्नेशन कभी था, वो खत्म हो गया उस पीरियड के साथ। I don't think that it is required to be written again. मेरे बायोडाटा के अंदर तो आ ही गया ना कि आई एम द पास्ट प्रेसिडेंट, और जिसको पता मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ उसको पता मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। Why should I carry a card to different authorities which will say that I was the past chairman of ASB, or I was the past chairman of so and so branch, or I was the past chairman of the regional council? Why should it happen? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। I think ये प्रपोजल अगर जाता है तो it will not be seen in a good light. Very frankly, मैं तो आज तक अपना कार्ड नहीं छपवाया। मैं तो 2 बोर्ड्स के ऊपर बैंक के रहा। जिन सालों में मैं बोर्ड पे था उस वक्त मैंने कभी कार्ड के ऊपर नहीं लिखा that I am on the board. सर आपको जरूरत नहीं है, बट सर कुछ नहीं, आप तो सब जानते हैं। नहीं, बट प्रमोद जी I think we have to be very, ये ethical practices का पार्ट है। मतलब कि मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि बाहर में जाके मुझे ये लिखना है इसके ऊपर। I don't think, I think I am at par with any other member. मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बारे में कि मैं जिन मेंबर्स ने मुझे इलेक्ट किया उनके बीच में वापस आ रहा हूँ, तो मेरे कार्ड के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं। मेरे बायोडाटा में लिखा गया ना कि मैं हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? बेसिकली I personally feel we have to be above all these things. और दूसरा मैंने हमेशा ये कहा कि हमने पहले तो हमारे खैर कोड ऑफ कंडक्ट में ये एक्सप्लिसिट नहीं था। ये जब फिल्म्स चलती हैं आजकल तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखता हूँ बैठ के, तो कई उसके नीचे आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सो एंड सो, ऑडिटर सो एंड सो। भाई why this has been permitted specifically under this particular code of ethics? पहले तो ये था नहीं। पहले तो अगर कोई चाहता तो इनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता। आज की डेट में हमने परमिट कर दिया कि आप ये ऐड कर लो, तो भाई फिर मुझे ये भी करने दो
कि मैं किसी भी क्लाइंट का नाम या कोई भी क्लाइंट मेरा नाम कहीं पे भी लिख के भेज दे? Why should it be कि जो फिल्म वालों का ऑडिट कर रहे हैं या फिल्म वालों के साथ कनेक्टेड है उनका नाम तो पूरी स्क्रीन के ऊपर चलता रहे, and millions of people can see this. तो मेरे क्लाइंट का जो अच्छा ग्रुप भी हो वो मेरा नाम कहीं पे लिख ना सके, तो भाई फिर मेरे क्लाइंट को भी परमिट करें आप कि भाई आप अपने जिसको भी आपने सर्कुलेट करना हो कि भाई मेरे ऑडिटर ये मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो उसको भी करने दे। फिर मेरे ख्याल में ये तो नाजायज है कि जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को ऑडिट कर रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके के लोग बैठे हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका ऑडिट कर रहे हैं, उनका नाम तो स्क्रीन के ऊपर चले, चाहे वो थिएटर हो या वो टीवी हो या कुछ और हो। और जो आदमी एक नॉर्मल ऑडिट कर रहा है उसका नाम उसका क्लाइंट नहीं पब्लिश कर सकता कहीं पर। आई डोंट थिंक दैट दिस इज फेयर एनफ। So that's another thing that I wanted to say basically in this particular direction. इस कोड ऑफ एथिक्स के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। इस कोड ऑफ एथिक्स ने एक चीज जो बहुत बढ़िया की वो ये किया कि भाई ये जो हमारे नॉन कम्युनिकेशन के केसेस आते थे बहुत सारे, उस नॉन कम्युनिकेशन केसेस में कई बार ये होता था कि रजिस्टर्ड एडी होना चाहिए सिर्फ। अब ये कर दिया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपने भेजा है और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उसको सर्विस हो गया, आपके पास एक्नॉलेजमेंट है, in that particular case it will be considered to be valid service provided it has gone on his last email ID which was available with the institute. I think that's very good. It will reduce a very large number of cases. Either it will increase large number of cases or it will reduce. मेरे ख्याल में reduce ही होंगे, क्योंकि अभी क्या कि हर व्यक्ति वो आ जाता था जी मुझे तो मिली नहीं जी, चिट्ठी नहीं मिली जी, और दूसरे के पास रजिस्टर्ड एडी पड़ी नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बढ़िया मूव है। और दूसरा ये आपने कर दिया कि आपने किसी को चिट्ठी भेजी, रजिस्टर्ड एडी भेजी, या कोई भी आपने किसी मोड से भेजी चिट्ठी और उस पे लिख के आ गया दैट एड्रेस इज नॉट अवेलेबल या उसका दरवाजा बंद है, then it will be considered to be valid service of notice on him. I think this is also going to reduce number of cases so far as the non-communication cases are concerned. क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, जब मैं प्रेसिडेंट था और उससे पहले 70-80% केसेस हमारे पास इसी के होते थे, नॉन कम्युनिकेशन के। और मुश्किल ये थी कि जो फाइल करता था केस वो तो फीस उसकी होती थी 2500 रुपए, 1000 रुपए, और इंस्टीट्यूट के लग जाते थे 5 लाख रुपए इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने में, और अल्टीमेटली होता था मेंबर रेप्रीमेंड। तो व्हाट इज द पॉइंट? I think we have made the life far more simple so far as this particular part is concerned. मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं क्योंकि मेरे ख्याल में ये significant features हैं. Unless someone wants to ask any other specific question, I will like to answer that out. But मैंने आपकी food thought मतलब कि आपकी thought process के लिए काफी आपको point दिए. उस पे मैं आपसे जरूर कुछ जानना चाहूंगा, जहां पे मैंने कहा कि आपसे 1-2 इनपुट अगर मिल जाए तो that will be good. Pramod ji. Thank you, President sir. सर एनलाइटिंग मैं सच बताऊं तो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर मैंने पहली बार पूरा सुना है, रिवाइज कोर्स पे मैंने इससे पहले नहीं सुन पाया, जो भी रीजंस है. यस, एनलाइटिंग काफी चीजें नॉलेज में आई. जब कुछ चीजें सर जो आपने कही, यस, वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड आई विल श्योरली टेक केयर ऑफ दैट whenever an opportunity comes into the council. एक और है, सॉरी बिफोर यू. नहीं प्लीज बोलिए ना. हमने ये किया है कि भाई अगर कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल का प्रोग्राम है, तो कोई फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको स्पॉन्सर कर सकती है. तो भाई छोटी फर्म तो कर नहीं सकती कोई स्पॉन्सर. और इंस्टीट्यूट के पास अपने पास काफी पैसा है यार, फर्म बजाय किसी फर्म से लेने के. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसके प्ले कार्ड वहां लगाना चाहते हैं? किसी फर्म के, बड़ी फर्म के? व्हाई शुड इट हैपन? आई थिंक लेट्स नॉट डू समथिंग which can be counterproductive to these to the interest of the smaller firms basically. क्योंकि छोटी फर्म कोई स्पॉन्सर नहीं कर पाएगी
program. ना middle level की कर पाएगी. कर पाएंगी तो बड़ी फर्म्स ही सिर्फ स्पॉन्सर कर पाएंगी. उसमें हमने ये जरूर लिखा, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस टू बी लेड डाउन बाय इंस्टीट्यूट. आप कितनी भी कंडीशन ले डाउन कर लोगे, नाम तो उनका लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. किसी कॉर्नर में लगा दोगे, पीछे लगा दोगे, आगे लगा दोगे, नाम तो लगाना ही पड़ेगा अगर स्पॉन्सरशिप लूंगा मैं तो मेरे ख्याल में दिस वाज अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट कि ये भी छोटी फर्म्स के हित में नहीं है मेरे ख्याल में. एक पॉइंट गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली एनिवर्सरी का है कि आप अखबारों में ऐड दे सकते हैं. उस पर मैं जाना चाहता नहीं, क्योंकि अगर किसी की गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली हो रही है, कोई एक बार देना चाहता है तो देख ले, कोई बात नहीं. परंतु आई थिंक ये जो नॉर्मल रूटीन में है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह तो हर रोज ही होती रहनी कोई ना कोई हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल के, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रोज होनी है, तो इसमें अगर बार बार कोई फॉर्म्स देती रहे तो वो ठीक नहीं. मैंने तो हालांकि ये देखा CII वगैरह के प्रोग्राम में 2-3 फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर लिखा होता है लंच स्पॉन्सर्ड बाय सच एंड सच फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ये आपको बता सकता हूँ, मतलब कि हम इतना कहीं पे चल रहे हैं कि हमें ये भी लिखवाना पड़ता है लंच स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो. तो फिर ठीक है, भगवान मालिक है हमारा, क्या करेंगे. Thank you, sir. Sir, yes, what you have rightly informed us, ये कि जो 3 clauses हैं specifically NOCLAR, fees related side और as well as taxation services, ये तीनों अभी implement नहीं हुई है, defer किए हैं because sir आप भी हैं ESB में, तो you know that more deliberations would be required on all the 3 points. So no, I'm not in ESB. I'm not in ESB, but I personally feel that these require far more detailed deliberations. Yes, sir. So that's why it has been kept in abeyance, and full discussion on this would be required because various of the members have raised their objections. और हमने भी कहा जैसे NOCLAR is only for the listed companies या fee relative size के अंदर it came to a conclusion that it is only for a list for a PIE. For the others it would be 40%. उसके अंदर भी हमारे को ये था, जैसे हमने भी लिख के दिया उनको कि basically merely intimating the management will not remove the intimation threat. Yes. मैं उनको intimate दूंगा, उससे मेरा threat remove नहीं होगा. So उससे बढ़ जाएगा, उससे बढ़ेगा, क्योंकि वो अगर उसको ये पता हो कि भी इससे मेजर फी तो इसको मेरे से आ रही है, तो वो मुझे मिसयूज ही करेगा, मुझे कोई मेरे प्रति सद्भावना नहीं रखने वाला क्लाइंट किसी भी सूरत में. हमने भी सर, मैंने भी इसको ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा कि इससे हमारा कोई फायदा कुछ नहीं हो रहा. Yes, review by another firm, that is okay, that is not a bigger issue, but so yes, all the 3 would be discussed and rightly guided by you regarding the NOCLAR, that yes, of course it is only for the listed entity right now, but then how it can be marketed, and but before that, yes, very rightly suggested by you, and I feel so that proper guidance should be issued by the committee or the council, that what would be covered under NOCLAR, what would not be, and how to go ahead. Because if that is not there, तो practically implement करना बड़ा मुश्किल है. I personally feel so. Relative size का हमने कह दिया. सर आपने जो text में addition की और वो order sheet की बात कही थी, very rightly said. But now after this faceless assessment, ये सब खत्म हो गया. Faceless assessment के अंदर अब मेरा scrutiny, search, 148 सारा कुछ ऑनलाइन होगा, तो साइन करने का सीए का कोई रिक्वायरमेंट नहीं. सो दैट, बट हाँ, पुराने केसेस, यस, पुराने केसेस आर स्टिल देयर व्हिच आर स्टिल इन अपील. पर फेसलेस में भी कोई आदमी तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना. नहीं, वो ऐसे खुद भी कर सकता है, एआर करेगा, लेकिन ऑर्डर शीट होगा नहीं ना. करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अल्टीमेटली आप देखेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, पर सर उसके अंदर कोई एग्रीड एडिशन वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा. वो एग्रीड वाला नहीं होगा, बस इतना ही है. बस इतना ही है, बाकी तो सारे थ्रेट्स हैं, दिस हाईएस्ट पॉसिबल डेजिग्नेशन मेरे को आने के बाद ही पता लगा, यस इट इज अलाउड. So whenever it would be coming to the discussion, I'll surely take care, because मैं सर होने के बाद भी I never post anything with as a central council member also. मैं अभी भी प्रमोद जैन हूँ, वेस्ट दिल्ली सर्कल के अंदर भी मैं सर प्रमोद जैन हूँ. I am not a council member. मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आजकल आते हैं फॉरवर्ड के लिए किताबों के. किसी पे भी आप अमरजीत चोपड़ा FCA के अलावा कोई और शब्द नहीं मिलेगा आपको. Sir, you are a branding yourself. You don't need, sir.
नहीं, there is no need. Very frankly, there is no need. There is no need. I personally feel कि अगर हमें पब्लिसाइज ही करना होता तो फिर तो कोई और 4-6 तरीके थे पब्लिसाइज करने के. I think you have contested your last election absolutely professionally, and that is why I said that you are the pride basically. ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने, आपको कोई बुराई तो मिली नहीं, आप फिर भी मेरे ख्याल नंबर 2 ही थे if I am not mistaken. So I think you are, and this time the position could be altogether different. So God bless you. पर मेरा अपना मानना ये है कि कुछ इथिक्स के ऊपर हमारा जोर रहना चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का भी, बहुत जरूरी है. नहीं, I fully agree and I'll surely take care whenever this comes into discussion. और सर ये जो CA फर्म फिल्म्स में आती थी मैंने भी देखा बट कभी मैंने ऑब्जर्व नहीं किया. I'll ask this question in the ESV if it is allowed because अभी recently जो अलाउ किया है कुछ काउंसिल मेंबर्स की फर्म्स का भी नाम आता है, ये भी आपको बता दूंगा. अच्छा, so I'll take care when it is coming because अब पहले ना प्रेजेंटेशन के अंदर भी फर्म नेम अलाउड नहीं था, अब अलाउ कर दिया because to create a level playing field and that's why it was discussed कि जो ये नेशनल प्रोग्राम्स इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता था, ये जो बिग फर्म्स हैं टू बी वेरी फ्रैंक वो कोई ना कोई वाया मीडिया निकाल के अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेती थी. तो उनका ठीक है भाई, अगर स्मॉलर फर्म्स हैं, अगर मान लीजिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सूरत में हो रहा है या सब बहुत सारी सिटीज में होता है तो वहाँ की जो लोकल फर्म है उसको भी स्टॉल लगाना अलाउ कर दे. नहीं वहाँ तो ठीक है क्योंकि यू आर अमंग्स योर ओन पीयर्स बेसिकली. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के और प्रोफेशनल्स के बीच हैं, परंतु आप एक जनरल पब्लिक के बीच में हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं वहाँ सर मेरे ख्याल से सर वहाँ पे भी अलाउड नहीं है अभी शायद. अगर है तो मैं चेक कर लूंगा सर. मैं चेक वो है वहाँ पे वो किया हुआ है ना, यही तो चक्कर है, यही मैं बता रहा हूँ. क्योंकि अच्छा, मैं तो आजकल क्योंकि खाली आदमी है बुढ़ापे में, अगर नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते हैं सीरियल देखते हैं तो उसमें नाम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता. और सर ये कम्युनिकेशन विद द पास्ट ऑडिटर आई आल्सो एग्री. दिस इज वन ऑफ द, मैं अब तो सर मेरे को तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं डीसी के अंदर आए हुए, तो यस मोस्ट ऑफ द केसेस और वो छूट जाते हैं. बट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि दे आर वर्किंग इन द टाइम्स टू कम टू मेक इट समथिंग अलाइंड विद द यूडिन, कि अगर वो यूडिन से कुछ उसको कलेक्ट कर देंगे तो फिर आगे पीछे जो है ये पास्ट कम्युनिकेशन वाली कहानी भी शायद हो जाए. अब चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग के प्रोसेस में है. so let us see how that is developed so that this thing can be done away with. ये हो जाएगा. बट ये सर जो आपने SA 250 का बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे यस वी नीड टू रीस्टडी दैट SA 250 एंड सी कि हम जो अभी ऑडिट कर रहे हैं, जो अभी करने भी वाले हैं, मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम ऑडिट करें ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो लेट अस सी SA 250, रीड दैट, कभी एक सेशन उस पर रखते हैं दोबारा और उसके ऊपर हम जो अगर कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं तो let us start doing. I always believe that we can improve our auditing because we are currently the only profession which is allowed to do an audit of a financial statement and we need to improve. So ये आपने सर बहुत अच्छा बताया ये 250 वाला, which I doubt कि our members are following it. सर बहुत सारे आपने मेरे को inputs भी दिए, really obliged for that. I'll surely Thank you very much sir. Thank you. हमारे मेंबर्स के किसी के कोई भी क्वेश्चन होगी तो मैं I'm willing to answer that out. Sir, with your permission, yeah. ये जो 15% फीस वाला जो मैटर है सर, तो अभी की पोजीशन में एज टू माय अंडरस्टैंडिंग अभी PIE की तो बात नहीं है, अभी तो सभी पे एप्लीकेबल है. अभी तो पेंडिंग हो गया, अभी का पेंडिंग है, पर अभी जो पोजीशन है उसमें तो PIE का डिस्टिंक्शन नहीं था. PIE की पोजीशन नहीं आ रही थी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, और उसमें एक और मैटर भी है कि वो पोस्ट और प्री क्वालिटी रिव्यू को मैंडेटेड कर रहे हैं, आइदर पोस्ट और प्री. केवल डिस्क्लोजर की बात उसमें नहीं है. दैट हैज टू बी आइदर पोस्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और प्री क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इन 3rd और 4th ईयर, एंड that too with the consent of the client. समझा नहीं मैं बात आपकी. सर जो सेफगार्ड सजेस्टेड है उसमें पोस्ट एंड प्री, आइदर पोस्ट क्वालिटी रिव्यू और प्री क्वालिटी रिव्यू विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट करना जरूरी है. अगर वो उसके लिए कंसेंट नहीं करता है
So the audit, I think in that situation, in my view, cannot be carried. अगर उसको as it is provision वो applicable होता है तो. Anyway, that's since it has been kept in abeyance, so I am not commenting upon that at all. वो जब नया आएगा तब देखेंगे. अभी किसी बारे में भी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ये सारा इसका स्वरूप ही बदल जाएगा मनमोहन जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ. हाँ, बदलना चाहिए सर. प्रोविजन का स्वरूप ये रहेगा नहीं, ये क्योंकि इतने ज्यादा प्रोफेशन को हिट कर रहा है ये कि इट कैन नॉट रिमेन व्हाट इट इज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. दैट आई एम वेरी क्लियर. इसीलिए इसको डेफर किया गया ताकि इस पे वापस प्रॉपर डिस्कशन होके और अमेंडेड प्रोविजन से ही आएगा सर. और एक्चुअली दूसरा ये है कि ये वॉल्यूम 2 का पार्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और वॉल्यूम 2 में अभी चेंजेस आपने की नहीं है. वॉल्यूम 2 में जब चेंजेस होंगी तो मतलब कि होल हॉग होंगी. ये एक चेंज आ रही थी सिर्फ वॉल्यूम 2 से निकल के, तो वॉल्यूम 2 को इसीलिए एक ही गो में करना चाहिए, सारे के सारे को रिव्यू, और फिर जो चेंज आएगी वो देखी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी. प्रभु जी, जो चोपड़ा जी ने मैटर उठाया स्पॉन्सरशिप वाली, मैंने ना कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के इवेंट्स देखे हैं, टेक्नीशियन इवेंट्स वगैरह, जहां की सीए फॉर्म्स के स्पॉन्सरशिप लगी रहती है उनके बैनर पे, बैकग्राउंड बैनर्स वगैरह के ऊपर में. Is it really allowed and if allowed should be allowed then? नहीं allowed. But ये बैनर्स में रहते हैं नाम उनके, बकायदा फर्म का नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखे हुए रहते हैं. वो 3-4 फर्म्स ही हैं, ये भी आपको बता दूं. एक तो कलकत्ता की है, इतना भी बता सकता हूँ आपको. चोपड़ा साहब, ये अनफॉर्चुनेट है. ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं दिल्ली के फर्म्स में बात करो, दिल्ली फर्म्स में मैंने नाम देखे हैं. वो ये अनफॉर्चुनेट है. मैंने कहा 3-4 फर्म्स ही है, उसमें से एक कलकत्ता की है. अनफॉर्चुनेट है पर है, ये बता सकता हूँ. होना नहीं चाहिए. रमन जी, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो इट शुड बी ब्रॉट, और मैंने देखा है, देखो मैंने अभी हाँ, तो ऐसे मैंने केसेस में, हाँ ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि जब जाता है तो इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड द एक्शन ऑन दैट. थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यस इंस्टीट्यूट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एक्शंस ऑन ऑल सच. जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि सीए अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है रिक्शे के पीछे, ये सब कुछ, ये हमारे पास जब आता है तो वी जस्ट टेक इट ओवर एंड गिव इट टू द रिलेटेड कमिटी, रिलेटेड पर्सन हु इज टेकिंग एक्शन. थोड़ा टाइम लगेगा एक्शन लेने में, क्योंकि चोपड़ा सर को पता है कि वो एक प्रोसेस से निकलता है, जब वो बीओडी के पास जाएगा वो सारा कुछ. बट यस, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रमन भाई. नो थैंक यू. दूसरा एक सर इशू में आपके नोटिस में लाना चाह रहा था, ये जो नो क्लार वाले क्लोज में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट पड़ सकते हैं कि जहां पर नॉन कंप्लायंस है लेकिन वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है नहीं, एंड दैट मे बी ए डिस्प्यूटेड और इंटरप्रिटेशनल इशू मैटर, और अथॉरिटी विल ऑलवेज क्लेम कि ये एक नॉन कंप्लायंस है एंड क्लाइंट विल ऑलवेज क्लेम कि ये नॉन कंप्लायंस नहीं है. ऐसे सिचुएशन में मैटर विल गो इनटू लिटिगेशन. बाद में क्या फेट डिसाइड होगा, अगर क्लाइंट सीए ने रिपोर्ट कर दिया तो अगेन वो डिफामेशन वाली सिचुएशन, और नहीं रिपोर्ट किया तो कोड ऑफ एथिक वाली सिचुएशन. इसकी कोई बैलेंसिंग होनी चाहिए सर. ये तो इंस्टीट्यूट को गाइडलाइंस लानी पड़ेंगी बकायदा. मैंने जो आप पहले आपसे बात की और जो प्रमोद जी ने खुद ही बोल दिया कि कंप्लीट गाइडलाइंस विल हैव टू बी गिवन बाय द इंस्टीट्यूट कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस व्हाट विल हैव टू बी डन. सपोज कीजिए जहां पे लीगल इंटरप्रिटेशन में फर्क आ सकता, वहां पे अगर आपके पास एक अच्छा लीगल ओपिनियन है और रखा हुआ है तो देन दैट कुड सेफगार्ड योर इंटरेस्ट. पर अगर आपने सिर्फ एक ओपिनियन वैसे ही लेके रख लिया विदाउट एक्सरसाइजिंग योर ड्यू डिलिजेंस, then you may not be safe. Let's be also be very clear. हमारे यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ सालों में लोगों ने किसी भी इशू के ऊपर जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, पर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, उस पर किसी से भी लीगल ओपिनियन ले लिया विच इज ब्लैटेंटली रॉन्ग. वो नहीं चल सकता. राइट सर. सो इसका एक और सॉल्यूशन ये भी है कि सर ये जितने भी नॉन कंप्लायंस हैं ये हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ एन नंबर ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज. तो वो तो इंस्टीट्यूट पे छोड़ रहा हूं मैं. देखिए ये तो जैसे जैसे अब ये इवॉल्व हो रहा है, इस बार में भी अभी इवॉल्व हुआ, पर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग है. हमारे यहाँ तो
मतलब कि हर एक बिजनेसमैन चलिए नॉन कंप्लायंस के ऊपर रहा, इफ यू आस्क मी। तो इसलिए हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति डिफरेंट है ऑडिट की। फॉरेन में इतना आसान नहीं है लॉस को ब्रीच करना, लोग करते होंगे तो डर भी है कि भाई वहां, मैं तो एक बात जानता हूं, अगर कोई बेस्ट डेमोक्रेसी है तो वो यूएस है। एनरॉन हुआ, मतलब कि एक कंपनी लाइक एंडरसन वाइज वाइप्ड आउट विद इन 1 ईयर। ये हो सकता है क्या हिंदुस्तान में? नहीं हो सकता बेसिकली, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये जो चीज है, जिस दिन ये हिंदुस्तान में होनी शुरू होगी उस दिन से बंद हो जाएगा। तो वहां पे लॉस की कंप्लायंस का लेवल और है, वहां पे दे अलाउ यू अ फ्री हैंड, बट इफ इट इज डिटेक्टेड देन यू आर गॉन। यहाँ पे डिटेक्ट होने के बाद कुछ हो नहीं रहा था, अब कुछ शुरू हुआ है बेसिकली। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू इयर्स। और इंस्टीट्यूट को भी मेरे ख्याल में नॉकलर को जल्दी में लाने की जरूरत नहीं है। मे बी आफ्टर they can first develop the entire material, they can discuss this it with the government, they can discuss it with the regulators। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए एक बात तो आप मान के चलिएगा, मैं किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और उसमें अगर कोई ऐसा लॉ मिला मुझे जिसकी ब्रीच है और मैं सीधा सेबी के पास चला गया, व्हाट कैन हैपन टू द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर स्टेक होल्डर्स? नोबडी नोज। I think we need to discuss it out with the various regulators, with the government, with the chambers, and then implement it, not before that. चोपड़ा साहब, इसमें जस्ट टू ऐड, मेरे को चेक करना पड़ेगा बिकॉज जो सेक्रेटरियल ऑडिट आया था तो उसमें भी सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर देयर वाज अ क्लॉज दैट दे हैव टू रिपोर्ट द कंप्लायंस ऑफ ऑल द लॉज। सो व्हाट वाज द व्यू टेकन बाय द सीएस इंस्टीट्यूट एंड हाउ दे हैव गाइडेड? आई सपोज वी शुड स्टडी दैट तो आल्सो। देख लीजिएगा, ठीक है। I think you can have a look at it. So that's all, sir. सर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है चैट पे कि कैन द कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर बी डन थ्रू एसएसपी पोर्टल? एसएसपी पोर्टल के थ्रू कैसे होगा भाई? हाँ भाई। ये क्या बात हुई? कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं करना, कम्युनिकेशन ऑडिटर से करना भाई। चलो, एनी अदर क्वेश्चंस? Thank you, sir. Thank you, Chopra sir, for such a thank you very much. detailed discussion on the Vice Code of Ethics. Thank you, Rakesh ji. Thank you, Manmohan ji. Thank you, Subhash ji. I request Manmohan ji, sir, I request Manmohan ji to please present formal vote of thanks and conclude the meeting. And of course, Manoj Anand was also there for some time. Thank you. Ji. to him Manoj ji also. is there. Manmohan ji, please. Yeah, very respected our own past president Shri Amarjit Chopra ji, dear friend Shri CCM Shri Pramod Jain ji, Rakesh Gupta ji, convener of the study circle, Praveen Jain ji, deputy convener of the study circle, all the esteemed members, Subhash ji, the founder member of the study circle, Manoj ji, really indeed चोपड़ा जी को तो जब से हमने स्टार्ट किया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सुनना शुरू किया, ऑडिटिंग को करना शुरू किया, तब से जब से प्रोफेशन में आए हैं चोपड़ा जी को सुन के, पढ़ के, समझ के हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। डे इन डे आउट वी आर ग्रोइंग विद लर्निंग्स फ्रॉम पर्सन्स लाइक चोपड़ा जी। और मुझे याद है पहली बार जब वेस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल में बैंक ऑडिट पे चोपड़ा जी का लेक्चर हुआ, and coincidentally that was the first year of our bank audit, और उसमें जितनी गाइडेंस मिली वो सारी जाकर के लगा दी। एंड वी कुड पॉसिबली, एज सुभाष जी विल रिमेम्बर, हम डिस्कस करते रहते, वी कुड पॉसिबली डिटेक्ट अ फ्रॉड एंड रिपोर्टेड देयर आल्सो। सो इंडीड चोपड़ा जी की गाइडेंस से, चोपड़ा जी की लर्निंग से जितना ऑडिट को प्रैक्टिकली समझने में हमें मदद मिली है और दूसरे इश्यूज को रियली इंडीड, और जो आज कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड सारी चीजों के ऊपर चोपड़ा जी ने हमें गाइड किया है, साथ में सजेशंस भी दिए हैं काउंसिल के लिए भी, मेंबर्स के लिए भी। रियली इन टाइम्स टू कम जो नए कोड ऑफ एथिक्स आए हैं, आई होप कि काउंसिल विल मेक ए डिटेल्ड डेलिब्रेशन and definitely seasoned persons outside the council also will be discussed, and all the other authorities and regulatory authorities would be discussed in various manners जैसा चोपड़ा जी ने गाइड किया।
और मैं ऐसी ही आशा और उम्मीद करता हूं कि चोपड़ा जी की गाइडेंस हमें और भी समय समय पर मिलती रहे वेरियस इश्यूज पे। चोपड़ा जी का हाथ हमारे सर पे हमेशा सदैव बना रहे। इसी के साथ सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करता हूं कि वीक के वेरी फर्स्ट डे में दे हैव जॉइंड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you very much, Very much, Chopra. sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. So shall I end the meeting? Yeah, sir. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay जी। Thank you ji.